Computer. Yes, friends. So what I was saying is that today we are going to discuss Google Ads, and number two is the future of the Google Ads is also very bright. Right? Why? Right? Why ads future is bright compared to, you can say, other other way which you can generate the inquiry. So कोई बताएगा मुझे क्यों? पहले तो गूगल एड्स क्या है वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो फ्रेंड्स, let me share my screen. Okay, you can see my screen, right? Yes, sir. Okay. So friends, huh? Okay. So गूगल एड्स जो है, किसी को पता है गूगल एड्स के बारे में कुछ भी? यस, व्हाट इज गूगल एड्स एंड ऑल अदर थिंग्स? यस, किसी को कोई आइडिया? I can. यस, प्लीज गो अहेड. Yeah, so as far as whatever I've read or whatever I perceive is it's also known as PPC. Okay. And it's basically used to drive any dedicated traffic or qualified traffic it directs a qualified traffic to your website, and Okay. you use it. The main objective for businesses to run Google Ads would be either to increase their sales or generate more awareness among the customer base. So Agree. that's Very, all. very good. Yes, yes. Very, very near to what exactly it is. Yes. So, uh, you are absolutely right. So that is the main purpose. Yes, yes. So Google Ads is basically it's a platform where you are advertising, you're promoting your product as a pay-per-click paid ads and organic through organic way that we Okay. are running. Through organic way or paid way? Sorry, through a paid way. Okay. Okay. So Yes, perfect. basically, it's a promotion of something that you are dealing with. Very good. You are absolutely right. Sir, in simpler words, can we say that it's an opportunity for those firms who are not on top of the search engine optimization, and they get a valid chance to display their products and get traffic? Yes, they see. I am about to explain, and then you will get the idea that what is when you should use the Google Ads and why you should use the Google Ads. Right. So for now, I would like to know that if anyone know anything, then we can start with those things. Right. So whatever the things we just heard is perfectly fine. Right. So friends, जो गूगल एड्स है या दुनिया में आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे ना, वो बेसिकली पहले पेड एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे कि पेड एड्स क्या है इन नटशेल. राइट. और उसके बाद हम लोग गूगल एड्स को डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी टाइप का पेड एड्स है, राइट? वेदर इट इज गूगल एड्स, वेदर इट इज फेसबुक, वेदर इट इज टिकटॉक, वेदर इट इज लिंक्डइन, वेदर इट इज कोरा, व्हाटएवर, उसमें सभी का गोल क्या रहता है कि आइदर उनको आरओआई मिलना चाहिए, राइट? दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ही वो लंबा चलेगा, या उसका ब्रांडिंग होना चाहिए, राइट? अगर प्राइमरीली उसका गोल ब्रांडिंग है, so in that case you need to measure another different type of metrics, like right, engagement. And if their goal is to generate the lead, their primary goal, or sell, their primary goal will be to generate the ROI, right? That is return on investment. So ये दो चीज फंडामेंटल है, आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर आपको पेड एड्स में आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको ये दो चीज को रेगुलर बेस पर मॉनिटर करना पड़ेगा, रेगुलर बेस पर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. रेगुलर बेस में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं आज किया 1 महीने के बाद किया, दैट विल नॉट वर्क, दैट विल नॉट गिव यू दी आरओआई, राइट? सो ये दो चीज को आपको हमेशा ध्यान में रख के काम करना है.
नंबर वन इज, अगर वो उसका गोल लीड जनरेट करना है या प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स, आरओआई। आरओआई में आपको कौन से मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड, या नंबर ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट पर कन्वर्जन, राइट, करेक्ट। क्यों वो जरूरी है, क्योंकि इसी से अल्टीमेटली क्लाइंट को आरओआई मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज और लेमन लैंग्वेज, ठीक है। और अगर आपका ब्रांडिंग का गोल है, तो आपका कौन सा मैट्रिक्स रहेगा जिसको आपको मेजर करना है, कॉस्ट पर एंगेजमेंट एंड नंबर ऑफ एंगेजमेंट, राइट। एंगेजमेंट में क्या आता है, व्हाट वी कैन कंसिडर एज एन एंगेजमेंट, यस, कोई बताएगा। एंगेजमेंट के तौर पर हम किसको कंसीडर कर सकते हैं, लाइक, राइट। अगर आप सोशल मीडिया की स्पेशली बात करो, लाइक, कमेंट, शेयर, लाइक राइट, कमेंट, क्लिक्स, राइट, फॉलो, राइट, करेक्ट। तो ये जो सारी चीज है ना, इसको हम लोग बेसिकली एंगेजमेंट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एंगेजमेंट के मैट्रिक्स है, इन जनरल इसको हम लोग एंगेजमेंट बोलते हैं। बट इफ यू वुड लाइक टू नो दिस एंगेजमेंट इन डिटेल, वी कैन कंसीडर दैट दिस ऑल आर द एंगेजमेंट, ठीक है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, आपको ये 5 में से नॉर्मली एक मिलेगा, आइदर वो लाइक करेगा, आइदर आपकी पोस्ट पर कमेंट करेगा, आइदर क्लिक करेगा, आइदर शेयर करेगा, ठीक है, या तो आपके पेज को फॉलो करेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक एंगेजमेंट लाने में आपको कितना कॉस्ट लगता है और कितनी एंगेजमेंट आपको मिली, ये मैट्रिक्स कब कंसीडर करना है फ्रेंड्स, वेरी गुड, जब आपका गोल, अगर आपको क्लाइंट गोल है, सपोज आपको अमूल बोलता है कि, या बीजेपी का कोई कैंडिडेट बोलता है कि अभी भी लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, आई वांट मैक्सिमम एंगेजमेंट, उनको लीड नहीं चाहिए, राइट। तो वो केस में लीड विल नॉट मेक सेंस, तो उनको क्या चाहिए कि भी हमें एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, राइट। तो अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, या उसको, इफ दैट पर्सन इज अवेयर अबाउट दिस डिजिटल मार्केटिंग, वो सीधा ये पूछेगा कि भाई आपकी कॉस्ट पर एंगेजमेंट क्या होगी मेरी, और नंबर ऑफ एंगेजमेंट, मानी ये एंगेजमेंट आप कितनी लेकर आओगे, राइट, इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, right? So that matrix you need to keep on tracking, keep on analyzing on a daily basis या alternate day basis पर। क्यों ये जरूरी है, वो आगे हम लोग देखेंगे, राइट। नंबर 2 कि कॉस्ट पर लीड एंड नंबर ऑफ लीड, या कॉस्ट पर कन्वर्जन एंड नंबर ऑफ कन्वर्जन, राइट। तो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, राइट, उसमें एक लीड आपको कितने में मिलती है, ऑफ कोर्स क्वालिफाइड होनी चाहिए, राइट, अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड नंबर 2, नंबर ऑफ लीड्स। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ इट इज गोइंग टू, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सपोज मैं आपको ट्रेनिंग की बात करता हूं, जस्ट लेट अस टेक वेरी बेसिक एग्जांपल। सो बेसिकली सपोज हमें 10 लीड आती है, ठीक है, सपोज हमें 10 लीड, 100 यूजर जब क्लिक करता है, राइट, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनारियो बता रहा हूं। सपोज 100 लोग जिसको ट्रेनिंग लेनी है, वो जब सर्च करते हैं गूगल पे कि भाई एसईओ ट्रेनिंग इन अहमदाबाद, या तो गूगल एड्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब ऐसे ही मुझे जब 100 क्लिक, मानी 100 लोग जब मेरी एड पर क्लिक करते हैं, सो आई हैव टू पे, सपोज एक क्लिक का है 200 रुपए फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, 20,000। यहां तक क्लियर। अगर मुझे ये 20, इसमें से समझ लो कि मुझे 5 नहीं, सपोज 6 इंक्वायरी मिलती है, 6 इंक्वायरी, राइट, मानी 6 पीपल विल कॉन्टेक्ट मी आउट ऑफ 100, तो मेरा लीड रेट क्या हुआ, 6%। वेरी गुड, 6% विल बी माई लीड रेट, राइट। इंडस्ट्री बेंचमार्क इससे कम है, राइट, इंडस्ट्री बेंचमार्क इज बिटवीन 3 to 5%, right, that is industry benchmark, but let us assume that it is 6%। मानी एक लीड मुझे ऑन एन एवरेज कितने में आएगी फ्रेंड्स, 3,333। यहां तक क्लियर है सबको, इट इज वेरी सिंपल। 100 पर जितनी कॉस्ट हुई, राइट, एक लीड जनरेट करने में हमें, और 6 हमें लीड मिली, तो उसको 6 से डिवाइड कर देना है। सपोज मुझे ऐसी 5 इंक्वायरी आती है ना, तब एक कैंडिडेट कन्वर्ट होता है ऑन एन एवरेज। ऐसा मेरा पास रिकॉर्ड है, जब मैं मेरे काउंसलर को या सेल्स पीपल को पूछता हूँ कि भाई कितनी इंक्वायरी आती है वर्सेस आपका कन्वर्जन आपको होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई 5 इंक्वायरी आती है वर्सेस 1, मानी 20% हुआ, राइट, 5 से 1 मानी 20%। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो मुझे एक कन्वर्जन की वैल्यू मिल जाएगी,
5 से 1 होती है. So if I am going to multiply this with 5, I am going to find the value of one conversion. Yes or no? Yes. Right? तो एक कन्वर्जन मुझे कितने में मिलता है? 16,666. सपोज मेरी फीस है 25,000, राइट, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 50%, राइट, या तो 80%. अगर 50% है तो ये मुझे ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? राइट, 50% है. व्हाट डज इट मीन? 50% है फ्रेंड. हाँ, यस, 25,000 डिवाइडेड बाय 2. मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूं? 16,000. कितनी रेवेन्यू को जनरेट करने में, सॉरी, कितने प्रॉफिट को जनरेट करने में? 12,500. सो ये गूगल एड. यस, in this scenario you should not recommend the client, right, that you should go with Google Ads. समझ रहे हो आप? लेकिन अगर मेरा 80% है, राइट, एंड लेट अस टेक जस्ट assume, राइट, तो मुझे करना चाहिए, कर सकता हूं, राइट. क्लियर है सबको? ये फंडामेंटल है फ्रेंड्स. ये जिसको समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से, उसको बोल सकते हैं कि गूगल एड कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ना, उसकी क्लैरिटी आ गई, राइट. कई बार 4 साल वाले लोग आते हैं और मैं ये पूछता हूँ कि भाई सपोज ये, मैं उसको कोई भी रैंडम एग्जांपल देता हूँ, ये स्पीकर है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि ये स्पीकर की ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, राइट. तो वो सीधा शुरू हो जाता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं समझता कि इसका आरओआई मिलेगा, राइट. ये एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अमेजोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो. दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गूगल एड्स. This concept is just not limited to one platform. This concept is applicable to all the platforms available on the internet. Paid platform available on the internet. Fundamental ये है, right? तो आज के बाद कभी भी आपको किसी की भी गूगल एड्स करनी है तो कौन से वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए? कौन से वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए? कौन बताएगा? राइट, कौन से? एक मिनट, इसका आंसर दे रहे. कौन से वेरिएबल पता होने चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन. यस, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने ये वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल है 100. राइट. 100 इज द नंबर ऑफ क्लिक्स वी आर गोइंग टू रिसीव. तो ये क्या है? 200 क्या लिखा था हमने? कॉस्ट पर क्लिक. Cost plus क्लिक विल बी वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. यस और नो? अगर Yes, रियल एस्टेट का कर रहे हो तो ये 500 भी हो सकता है. अगर आप कम टिकट साइज वाली चीज बेच रहे हो तो इसका 10 रुपए भी हो सकता है, It's राइट. depending upon the business ना. यस, जिसके भी बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दे. यस, सो यहां तक क्लियर. तो पहला वेरिएबल कौन सा है फ्रेंड्स? CPC, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक. ये हमेशा चेंज होता रहेगा बिजनेस टू बिजनेस. तो यहां से आपको वो पता लगेगा कि भाई CPC क्या है. उसके बाद ये क्या है? 6 में हमने क्या लिया था? लीड नहीं ली थी. 6 क्या लिया था? यस, 6 क्या लिया था? 100. Number of inquiries, sir. Number of inquiries. नंबर ऑफ इंक्वायरीज वो सही है, लेकिन नंबर ऑफ इंक्वायरीज को हमने कौन से बेसिस पर लिया है? 100 के बेसिस पर. 100 के बेस पे. 100 के बेसिस पर कोई भी चीज लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? If you take anything on the basis of 100, what it become? Percentage. Right? 5th standard mathematics. Right? कोई भी चीज को अगर आप 100 पर लेते हो तो वो परसेंटेज बन जाती है, और 1 के बेसिस पर लेते हो तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है. राइट, आज मैथ्स का लेक्चर नहीं है, इसका ही है, बट ये फंडामेंटल चीजें जो आपको हमेशा पता रहनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन गूगल एड्स और दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर. सो फ्रेंड्स, 6 इंक्वायरी मानी 6% विल बी योर कन्वर्जन रेट. तो जो आप कितने परसेंटेज कन्वर्जन रेट गिन रहे हो वो भी क्या है? वेरिएबल है. हर एक बिजनेस में सेम नहीं होगा. जिसकी टिकट साइज नॉर्मली ज्यादा होगी उसका कन्वर्जन रेट कैसा होगा? अगर आप फ्लैट अगर कोई परचेस कर रहा है तो 100 लोग अगर आपकी एड पर क्लिक कर रहे हैं तो उसमें से 6 लोग इंक्वायरी नहीं देंगे नॉर्मली, बिकॉज टिकट साइज इज टू हाई. 3 करोड़ का फ्लैट है या 2 करोड़ का फ्लैट है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 100 लोग में आएंगे और 6 लोग आपको इंक्वायरी देंगे. अभी इंक्वायरी तक हम लोग बात कर रहे हो, कन्वर्जन की बात नहीं की है. जस्ट रिमेंबर दोस थिंग्स, राइट. तो उसमें हमेशा कन्वर्जन रेट नॉर्मली कम रहेगा, राइट. लेकिन आप इन जनरल बोल सकते हो कि बीइंग एन डिजिटल मार्केटिंग या गूगल एड्स एक्सपर्ट, आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसमें हमेशा 5% से ज्यादा कन्वर्जन रेट आना चाहिए. ये आपका खुद के साथ बेंचमार्क रखना है.
राइट, अदरवाइज आपकी जरूरत नहीं है। क्लाइंट खुद एड रन करके 3% 2% तो जनरेट कर सकता है खुद, राइट, बट आप अगर वो आपको पे कर रहा है, सो योर बेंचमार्क शुड बी दैट यू शुड जनरेट द कन्वर्जन रेट मिनिमम 5%, राइट। तो आप यहाँ पर 5% ले सकते हो, यहाँ पर मैंने 6% लिया है बिकॉज मुझे पता है कि मैंने सीपीसी हाई लिया है इसलिए। और ये पार्ट कौन सा है फ्रेंड्स, कितनी इंक्वायरी आती है वर्सेस कितने कन्वर्जन होते हैं, राइट। तो 5 में से एक कन्वर्जन होता है, मानी 20%, राइट। तो ये भी क्या है, वेरिएबल है। ये आपको डिटेल्स कहां से मिलेगी, फ्रॉम वेयर यू विल बी एबल टू फाइंड दिस डिटेल्स, कहां से मिलेगी ये डिटेल्स, कितनी लीड आएगी और एक कन्वर्जन मिलता है, वो डिटेल्स आपको कहां से, क्लाइंट से मिलेगी। नॉर्मली क्लाइंट के पास ये डेटा रहता है, या तो एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता है तो उनको अप्रोक्सीमेटली पता रहता है कि भाई सपोज रियल एस्टेट का आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उनको पता रहता है कि भाई गूगल एड से या सर्च करके कोई 10 इंक्वायरी आती है या 20 इंक्वायरी आती है तो एक कन्वर्ट होती है। ये डेटा ऑन एन एवरेज उनके पास रहता है, राइट। अगर नहीं रहता है तो आपको शुरू करवाना है कि भाई वी आर गोइंग टू जस्ट गिव यू द लीड इन द स्प्रेडशीट एंड यू नीड टू add the comment or notes that which is qualified and which leads has been converted. Clear है, यहां तक सबको क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस दैट मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि जो लोग 5-5 साल ये फील्ड में गूगल एड्स के लिए काम करते हैं और ये फंडामेंटल उनके क्लियर नहीं है। इसके बगैर कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर आप काम नहीं कर सकते। वाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बगैर करोगे, राइट, आपको पता ही नहीं है एक लीड कितने में आएगी और आप उनका कैंपेन शुरू कर दिया, व्हाट विल हैपन, आरओआई नेगेटिव मिल सकता है, 100% मिल सकता है। और 2 महीने के बाद आप बोलोगे कि सर आरओआई पॉजिटिव संभव नहीं है, तो राइट हो सकता है, राइट। यू ऑलरेडी हैव द सीपीसी, you already have the benchmark, yes or no, right? So with this 2 number and you can Yes. take the conversion rate, ये 3 वेरिएबल अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हो। ये फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ है तो 2 बार वीडियो देखकर कर लेना, राइट, इट इज इजी, राइट, उसमें वो नहीं है, राइट। आप एक बार 2-3 बार इसको रिव्यू करोगे, आप अपने बिजनेस को रिलेट करके करना तो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। कोई भी दुनिया में जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो कौन सी चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू मस्ट हैव द क्लैरिटी, अदरवाइज यू कैन नॉट रन दैट एड्स प्रॉपरली, राइट। क्लैरिटी का मतलब वो है कि आपको उसकी इंसाइट पता होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, राइट, दोनों चीज, इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट। सो सबसे पहला है वाई, क्लाइंट का गोल क्या है। मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है जब मुझे इंक्वायरी आती है गूगल से, सो आई हैव सीन कि लोग पूछते हैं कि भाई, मैं जब पूछता हूँ कि भाई आपका क्या गोल है, राइट, तो वो बोलता है कि भाई सब लोगों तक पहुंचाना है या फॉलोअर्स बढ़ाना है, राइट। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई ठीक है, आपको सब लोगों तक पहुंचाना है, मानी आपको लीड नहीं मिलेगी तो चलेगा, नहीं लीड भी चाहिए, राइट। तो उनको पता नहीं होता है, वो लोग बताते नहीं, राइट, लेकिन अल्टीमेटली उनका गोल क्या रहता है, लीड रहता है। मेजोरिटी ऑफ द केस में मैंने 80% केस में देखा है कि जब कोई भी आपको इंक्वायरी करेगा, मानिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो मेजरली उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लीड। क्यों लीड रहेगा, वाई, उसका भी एक रीजन है, लॉजिकल रीजन क्यों रहेगा वो मैं बताता हूँ। सपोज आज मुझे कोई भी कंपनी में, सपोज आज कोई भी जगह पर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कब तक इन्वेस्ट करो, आज 100 कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ 100 कर रहे हो, थर्ड मंथ 100 कर रहे हो, राइट, एंड सो ऑन। 100 इज जस्ट द नंबर। अगर आप 100 को 10,000 या 15,000 या 50,000 से रिप्लेस करोगे तो यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। कब तक आप इन्वेस्ट करोगे, जब तक आपको 100 रुपए स्पेंड करके 200 रुपए मिल रहे हैं या 100 से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप स्पेंड करना कंटिन्यू रखोगे, यस और नो। अदरवाइज कुछ हद तक स्पेंड करके बंद कर दो, कोई भी हो, राइट। कब तक वो लॉस मेकिंग कैंपेन को आगे बढ़ाएगा। तो बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका अलग अलग वो लेवल रहता है। मैं 80% की बात कर रहा हूँ, राइट। 20% में हो सकता है कि उसका गोल सिर्फ ब्रांडिंग है और वो उसका बजट स्पेंड कर सकता है। तो अगर उसका गोल लीड नॉर्मली केस में रहता है, वो क्लैरिटी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। और अगर क्लाइंट ब्रांडिंग बोल रहा है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, तो उसको स्पेसिफिक आपको बताना है, क्या बताना है,
इसमें लीड नहीं मिल सकती। मिलेगी तो वो आपका नसीब है, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट। आपका गोल मत रखना। अवेयरनेस की कैंपेन को रन करके कभी आप लीड का गोल नहीं रख सकते, राइट? ये कैसा है, राइट, कि आप मीठा खा के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा, राइट? तो वो नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो ये वैसा है, ठीक है फ्रेंड्स? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। क्या रिमेंबर करना है फ्रेंड्स? अवेयरनेस अगर क्लाइंट बोल रहा है तो केपीआई अवेयरनेस का ही सेट करना है, राइट? क्योंकि आगे वाले जो सेटिंग हम लोग करेंगे ना, वो इसके बेसिस पर करेंगे। और अगर क्लाइंट का गोल लीड है तो सॉरी, हाँ, क्लाइंट का लीड है तो आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्लियर? सो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो why, उसका गोल क्या है, why, वो क्यों करना चाहता है, राइट? अदरवाइज Objective of doing. yes, objective of doing, correct. Number 2, this is also very important, to whom, राइट? आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, दैट इज ऑडियंस। उसको टेक्निकल भाषा में ऑडियंस बोलते हैं। तो ऑडियंस की फ्रेंड्स दो चीज इन नटशेल है। पहला है आप ठीक है, ऑडियंस में हमने ये 4 चीज को लिया है, दैट इज ओके। वो डेमोग्राफिक में आता है, एज एंड जेंडर, दैट इज ओके, वी कैन कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस। सबसे पहला इंटरेस्ट, माने उसका इंटरेस्ट क्या है, राइट? इंटरेस्ट क्या है, ये चीज समझ लो फ्रेंड्स। इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये दो चीज आपको दुनिया के, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीज को अगर आपने अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया ना, तो आप दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हो, राइट? ये इतनी गहरी चीज है। तो नंबर 1 इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है? सपोज मैं मैं रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट के लिए उसकी गूगल एड्स कर रहा हूँ, ठीक है? सो इसकी इंटरेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? व्हाट आर द इंटरेस्ट दैट persons may have to whom I would like to show my ads? People who are searching for estates, real estate or buying house. Very good, very good. तो उसने क्या किया, परफेक्ट है। उसने क्या किया कि इंटरेस्ट को आप कीवर्ड के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं है, वो बिहेवियर। कीवर्ड सर्चिंग ऑन द गूगल इज बिहेवियर, इज नॉट इंटरेस्ट, राइट? तो उसके इंटरेस्ट क्या हो सकता है? उसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट। सर किस चीज में, मतलब किस इसमें इंटरेस्ट है कि वो या तो रियल एस्टेट की कोई एक प्रोडक्ट, किस एरिया का प्रोडक्ट है उसमें वो इंटरेस्ट हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन का। करेक्ट, करेक्ट, यस। बिकॉज इफ दे आर डीलिंग विद द रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट की कोई प्रोडक्ट होगा। इफ दे आर एंड इंजीनियर और दे आर मेकिंग अ बिल्डिंग, तो वो इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट इज थिंग दैट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, पर्सन टू पर्सन, लेकिन आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, उसकी जेनरिक इंटरेस्ट को आप कंसिडर कर सकते हो वैसा, हाँ, राइट? यू कैन कंसिडर द जेनरिक इंटरेस्ट ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है? वो आप कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू कैन डू। we can ask also now when we are doing when we are asking from the person, we can ask if you are working in the, but if what is the motto of doing Google Ads or so through that we can uh, see, we can take a idea कि what is the keen interest of that person. यस, सो जो इंटरेस्ट है ना, वो आपको कैसे ढूंढना है, वो अभी दैट इज द मेन थिंग्स। सो इंटरेस्ट आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? एक चैट जीपीटी से, बाहर से, राइट? सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? पहले ये इतना इतना आसान नहीं है ये इंटरेस्ट को ढूंढना, राइट? और ये इंटरेस्ट आपको जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो बहुत काम में आएगा, गूगल एड से भी ज्यादा, राइट? सपोज मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, देखो, इफ आई एम सर्चिंग हियर कि कैन यू, ओके, यस, हमने उसका ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बना कर रखा है, राइट? सो गूगल एड्स प्रॉम्प्ट्स, राइट? ये प्रॉम्प्ट्स आप सबको मैं दे दूंगा, एंड दिस विल बी योर बिगेस्ट फ्रेंड। अगर आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को 5 टाइम्स करना है ना, तो ये बहुत काम में आएंगे। Sir, it's major problem because when we are writing in a GPT now, because of not right prompt, it is very difficult to us to identify the some things because Very true. ChatGPT is. So if you are giving this job, so we can also do something. यस, वही बोला ना मैंने कि ये प्रॉम्प्ट में ये दे दूंगा आपको।
because chat GPT अभी अभी लॉन्च हुआ है तो it's more difficult to us to deal with. नॉट वेरी ट्रू, उसकी चिंता मत करो, इसीलिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अदरवाइज आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है ना फ्रेंड्स, मैंने सब चीजों के प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरऑल ऑडियंस है, ठीक है? सो देखो, यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ कि गिव मी ऑडियंस। ऑडियंस में मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। फॉर गूगल एड टू टारगेट पीपल, सपोज हम लोग अहमदाबाद में कर रहे हैं, इन अहमदाबाद लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी आप देखो, जितना स्पेसिफिक आप प्रॉम्प्ट दोगे ना, उतना 3 BHK फ्लैट्स, चलो मैं स्पेसिफिक बोलता हूँ, 3 BHK फ्लैट्स इन अहमदाबाद, ठीक है? क्लियर? बाढ़ को भी पूछ लेते हैं, लेट अस सी कि वो क्या दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो भी हमारे लिए अच्छा है। चलो लेट अस सी, अभी देखते हैं। राइट, लोकेशन में हमें क्या टारगेट करना है? ऑफकोर्स अहमदाबाद, या तो आप ये भी कर सकते हो कि अहमदाबाद के सराउंडिंग कुछ किलोमीटर को भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू, राइट? अभी उसने क्या बताया, क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स? एक तो इसका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है, होम बायर्स में है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को भी आप देख सकते हो, मूविंग सर्विसेज में जिसने इंटरेस्ट लिया है, राइट, करेक्ट, और होम डेकोर में जिसने इंटरेस्ट लिया है, फर्निशिंग में, ये सभी को आप दिखा सकते हो, ठीक है? लाइव इवेंट्स, लाइव इवेंट्स मानी जो आपके माइलस्टोन होते हैं ना लाइफ के, राइट? जैसे कि हमारा बर्थ हुआ वो एक माइलस्टोन है, उसके बाद हम लोग पहली बार चलना सीखे वो एक माइलस्टोन है, पहली बार स्कूल में गए वो माइलस्टोन है, राइट? वैसे ये सब, शादी हुई वो माइलस्टोन है, राइट? बच्चे हुए वो एक माइलस्टोन है, राइट? तो ये सारे माइलस्टोन है। आपने नई जॉब ली वो भी एक माइलस्टोन है, ठीक है? सो ये माइलस्टोन है। तो ये न्यू जॉब और रिलोकेशन, तो ये अगर कोई नई जॉब रिलोकेट हुआ है तो उसको सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? रहने की। तो रहने में वो हो सकता है कि अगर सीधा परचेस कर सकता है, दैट माइट बी द केस। नंबर 2, मैरिज और फैमिली एक्सपांशन, ये भी हो सकता है, राइट? नंबर 3, अपसाइजिंग, राइट, कि जिसको अभी 1 BHK में है या 2 BHK में है, उसको 3 BHK में जाना है। डेमोग्राफिक, एज, इनकम लेवल एंड फैमिली स्टेटस, ठीक है? ये भी आप कर सकते हो। और कीवर्ड्स, राइट? कीवर्ड जो मैंने अभी बताया कि कीवर्ड इज आल्सो द इंटेंट, राइट? वो बिहेवियर है। 3 BHK फ्लैट्स इन अहमदाबाद, बाय 3 BHK अपार्टमेंट इन अहमदाबाद एंड सो ऑन, एंड रीमार्केटिंग, राइट? रीमार्केटिंग आल्सो द ऑडियंस, कि जिसको आपको, जिसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है उसको फिर से ऐड दिखानी है, दैट इज कॉल्ड। कैसे करना है हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। आज मेरा काम है आपका पेड फंडामेंटल में सुपर क्लियर कर दो, राइट? सुपर क्लियर कर दो। क्लियर, ये सबको आ गया? यही प्रॉम्प्ट आप सीधा बाढ़ में भी डाल सकते हो, राइट? एंड यू कैन गेट द आइडिया, राइट? आपको थोड़ा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसने जो लिखा है ना, वो एग्जैक्टली आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा नहीं, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। यहां से है ना आपको आइडियाज मिलेंगे, राइट? कभी भी कोई भी मशीन का उपयोग जब आप कर रहे हो तो दिमाग साथ में रख के काम करना है, बाजू में रख के काम, इसने बताया मानी कर दिया वैसा काम मत करना, वरना समझ लो मशीन की जरूरत है, आपकी जरूरत ही नहीं है। आपकी जरूरत क्यों है? आपकी जरूरत इसलिए है कि क्या करना है, नहीं, क्या नहीं करना है, उसका जो फिल्ट्रेशन है ना वो आपको करना है। समझ रहे हो आप? इससे आइडियाज मिलेंगे। मानी यही आइडिया अगर ये AI नहीं होता तो बिलीव मी इट विल टेक 3 to 4 hours फॉर मी टू जनरेट। ये सारे आइडियाज आपको किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप AI से यूज कर रहे हो तो ये सारे आइडियाज आपको सेकंड्स में आपको मिल जाएंगे। आपके पास प्रॉम्प्ट रेडी है, आपके पास क्लैरिटी है, और क्या चाहिए? दैट्स इट, यू जस्ट टू इम्प्लीमेंट इट एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ओके, सो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स आपको? ऑडियंस का बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? उसकी हॉबीज, वो इंटरेस्ट है जो परमानेंट होती है। जैसे कि किसी को बुक पढ़ने का शौक है तो उसका बिहेवियर नहीं है, वो उसका इंटरेस्ट है। किसी को एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है तो वो उसका इंटरेस्ट है। और बिहेवियर क्या है? जो जिस चीज के लिए अभी आप सर्च कर रहे हो वो बिहेवियर। जैसे कि अभी आप होम रिनोवेशन कर रहे हो घर का, और होम रिनोवेशन के लिए जो चीज की जरूरत है, सपोज AC की जरूरत है, रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, उसके लिए जब आप सर्च कर रहे हो तो वो क्या है आपका? वो क्या है आपका? वो आपका बिहेवियर। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर।
बिहेवियर मानी अभी आपको जरूरत है और आप उसके लिए सर्च कर रहे हो, वो क्या है? बिहेवियर। और जो परमानेंट है आपका, वो क्या है? आपका इंटरेस्ट है। क्लियर? इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में क्लैरिटी आ गई, राइट? नंबर 3, एज, कि भी कौन सी एज ग्रुप को आपको टारगेट करना है, कौन से जेंडर को करना है, ठीक है? और लाइफ इवेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ऑडियंस तक क्लियर सबको? ऑडियंस क्या है वहां तक? इसमें यहां तक किसी को कोई क्वेरी है? यस फ्रेंड्स, डू एनीवन हैव एनी क्वेरी? वेरी गुड। नंबर 3, कि आप क्या दिखाना चाहते हो, राइट? फेसबुक एड्स में या दुनिया के कोई भी एड में अगर आपको ये दो चीज पर आपकी पकड़ आ गई ना, राइट? कोई गूगल एड्स में काम कर रहा है, राइट? और जो एक्सपर्ट है और जो बिगिनर है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है पता है? ये दो चीजों के बारे में, ये दो चीजों में उसका कंट्रोल होता है, जो एक्सपर्ट है उसका। ऑडियंस एंड एड्स, मानी किसको दिखाना है और क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, ये दो चीज के बारे में जिसका कंट्रोल आ गया ना, वो एक्सपर्ट की कैटेगरी में, राइट? किसको दिखाना है? ऑडियंस। क्या दिखाना है? मानी एड्स, राइट? एड्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, राइट? अलग अलग टाइप की एड रहती है। सर्च एड है, राइट? जो गूगल में आप सीधा देखते हो, सपोज मैं यहां पर सर्च करता हूं 3 BHK फ्लैट्स इन अहमदाबाद, ठीक है? सो ये जो आई फ्रेंड्स, ये जो स्पॉन्सर्ड आया, ये क्या है? सर्च है। गूगल एड्स में दिखा हुआ सर्च एड है, राइट? ये सर्च एड है। अगर आप यूट्यूब में एड देख रहे हो तो वीडियो एड, अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर एड देख रहे हो तो डिस्प्ले एड या बैनर एड। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अगर आप जीमेल में प्रमोशनल टैब में एड देख रहे हो तो अगेन वो जीमेल की एड है। क्लियर? तो ये अलग अलग टाइप की एड रहती है, राइट? सर्च एड, यूट्यूब वीडियो एड, डिस्प्ले एड एंड जीमेल एड, ठीक है? क्लियर? अगर हम लोग सिर्फ गूगल की इन्वेंटरी की बात करें तो, सोशल मीडिया की बात करेंगे तो उसमें अलग आएगा, ठीक है? तो यहां तक क्लियर? एड्स में, सो एड्स में नॉर्मली फ्रेंड्स 3 फेज रहते हैं, ये ध्यान में रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ। सेल्स फनल बोलते हैं कई बार लोग, राइट? दे आर सेइंग सेल्स फनल। तो क्या है सेल्स फनल? कोई बताएगा मुझे? तो यूजर एक पेज पे आता है तो उसकी एक्टिविटी क्या करते हैं, जैसे यूजर आया तो उसको परचेज करना है प्रोडक्ट, तो परचेज करने के वो एड टू कार्ट में जाता है, फिर वहां पे रुका तो उसने बाय किया कि नहीं, वहां से चला गया तो वो फनल हुआ। फिर उसने बाय प्रोसेस में किया तो चेकआउट में गया, एड्रेस डाला तो वो एक फनल हो गया। तो वहां से वो उसने बाय करने का इंटेंशन रखा है तो आगे जाएगा, वरना वहां से बाहर निकल जाएगा। फिर पेमेंट पेज का फनल। ओके, ओके, यस, It's basically लेकिन अगर हम journey of a user. जर्नी ऑफ अ यूजर, यस करेक्ट, जर्नी ऑफ अ यूजर। तो मैं आपको उसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ कि जब आप गूगल पर ऐड कर रहे हो, राइट? व्हेन यू आर डूइंग द गूगल ऑन, व्हेन यू आर शोइंग योर एड्स ऑन द गूगल, यूजर का बाइंग इंटेंशन ऑलरेडी है, मानी वो ये फेज में है। गूगल एड्स का यही ब्यूटी है कि आप सीधा तीसरे लेवल के यूजर को टारगेट करते हो। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी अलग और प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, मानिए सपोज मैं फेसबुक में या इंस्टा में अपनी ऐड दिखा रहा हूँ, सो मैं इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पर ऐड दिखाऊंगा। उसमें 100% वो जरूरी नहीं है कि वो टाइम पे वो चीज को परचेस करना चाहता है। कभी भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई भी चीज जब आपको चाहिए तब जाते हो, कि आपको सोशल गैदरिंग या सोशल कोई भी चीज को शेयर करनी है तब जाते हो। You normally, whenever you have something which you would like to share to the आपकी जो, हाँ, ऑडियंस है या तो आपका जो सोशल नेटवर्क है, उसमें जब आपको शेयर करना है तभी जाते हो। यू नेवर गो टू द सोशल मीडिया टू बाय समथिंग, राइट? तो जब आपकी टारगेटेड ऑडियंस को आपकी एड दिखती है तो उसका उस वक्त इंटेंशन उसको बाय करना नहीं है, नहीं ही होगा, मेजॉरिटी ऑफ द केस में नहीं होगा, राइट? तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा उसको आप बोलोगे, राइट, मैं आपको जानता नहीं, राइट? और सीधा अगर आपको कोई बोले ट्रेनिंग लेनी है आपको, राइट, वो ये आदमी कहाँ दिमाग से टक गया है उसका, क्या, राइट, क्या बोल रहा है, राइट? लेकिन अगर आप उसके साथ बात करो पहले मीटिंग में भी कि क्या कर रहे हो आप, राइट, आपका गोल क्या है, राइट, आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, एक बार वो एक मीटिंग की, उसके बाद दूसरी मीटिंग में आपने जाना, आपका इंटरेस्ट क्या है, तीसरी मीटिंग में जब आपने बताया कि भी ये एक ऑप्शन है, तो आप जो भी आपको बता रहे हैं उसको सीरियसली कंसीडर करोगे?
करोगे। यही चीज एग्जैक्टली आपको सोशल मीडिया में करनी है, या तो जब आप सेल्स फनल बना रहे हो तब करनी है। तो क्या करना है, पहले फेज में आपको अवेयर करना है। मानी मानी सपोज 3 BHK के फ्लैट के लिए आप कर रहे हो, चलो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3। तो आपको ये सीधा नहीं बोलना है कि हम लोग 3 BHK के फ्लैट सेल कर रहे हैं, नो, नो वन विल टेक द इंटरेस्ट। आपको सीधा क्या करना है कि भाई 3 BHK के फ्लैट्स के फायदे क्या है, या तो 3 BHK के फ्लैट्स अगर आप लेना चाहते हो तो उससे आपकी लाइफ में कंफर्ट और हैप्पीनेस कैसे बढ़ेगी, ये सबसे पहले लिखा। सपोज आपने 10,000 लोगों को दिखाया, उसमें से 1,000 लोगों ने इंटरेस्ट लिया। सो दूसरे फेज में क्या करना है, कंसिडरेशन। ये आपने अवेयरनेस का फेज खत्म हो गया। अवेयरनेस के फेज में क्या करना है, बेनिफिट बताना है, राइट, और उसका एंड रिजल्ट बताना है, राइट, कि भी उसके बेनिफिट क्या है, जो आप बेच रहे हो उसके बेनिफिट क्या है। नंबर 2 कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में क्या करना है, 1,000 लोगों ने जिसने इंटरेस्ट लिया है उसको बोलना है कि भाई गोयल एंड को हाउ वी आर डिफरेंट, हाउ वी आर डिफरेंट। हम लोग कैसे डिफरेंट है, जैसे कि हम लोग एमिनिटीज बहुत देते हैं, प्राइम लोकेशन पर है, ये नजदीक है, एंड सो ऑन। ये बेनिफिट आप बोल सकते। इसमें सपोज 500 लोगों ने इंटरेस्ट लिया मानी एंगेजमेंट किया, एंगेजमेंट किया मानी लाइक कमेंट शेयर फॉलो एक्सेट्रा किया। उसके बाद लास्ट में आप बोलो कि भाई 15 अगस्त तक आपको 10%, जो लोग एडवांस में बुकिंग करवाएंगे उसको 10% ऑफ, राइट। सीधा वो आपको कांटेक्ट करेगा, राइट। वाई कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने सीधा उसको नहीं टारगेट किया है, उसका एक परसेप्शन बनाया है, उसको आपने एक, हाँ, उसका इंटरेस्ट को जान के आपने उसको किया है, राइट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो बेसिकली है, ये बेसिकली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेल्स फनल हमेशा आपको, जब आप ये लेवल के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपको हमेशा बनाकर काम करना है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, राइट। अगर मैं तीसरी मीटिंग में आपको बोलूं कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, कन्वर्जन रेट अच्छा आएगा। मैं पहली मीटिंग में बोलूं आप सुन सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कन्वर्ट होने की संभावना हमेशा आपकी कम रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तीसरी मीटिंग में हमेशा वो ज्यादा हो, बिकॉज आपको मैंने आपका भरोसा जीता है, या तो आपको है कि भाई जो मैं बात बता रहा हूँ वो मेक सेंस कर रही है, वैसा। क्लियर है सबको, ठीक है। लेकिन जब आप गूगल एड्स कर रहे हो, वेन एवर यू आर रनिंग द गूगल एड्स, उसमें क्या फायदा है, आप सीधी ऑडियंस जो कन्वर्ट बाय करना चाहती है ना उसको ही सीधा टारगेट कर रहा है, तो उसमें वो फनल बनाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गूगल एड्स। और इसीलिए गूगल एड्स का कन्वर्जन रेट हमेशा दुनिया के और कोई भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी सर्च इंजन का कन्वर्जन रेट अगर जेनरिक भाषा में मैं बोलूं तो उसका कन्वर्जन रेट दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म से हमेशा कैसा होगा, हाई होगा। आप फेसबुक पर ऐड करो, या ट्विटर पर ऐड करो, या कोरा पर ऐड करो, या टिकटॉक पर ऐड करो, कन्वर्जन रेट मानी 100 इंक्वायरी आएगी और आपकी कितनी कन्वर्ट होगी, वो हमेशा गूगल में क्यों ज्यादा होगा, उसको वो चाहिए और आप उसको दे रहे हो, सिंपल। इसमें आपको उसको उसका इंटेंशन क्रिएट करना है पहले, राइट, उसको अवेयर करना है, कंसीडर करना है, बाद में जाके वो कन्वर्ट होगा। इसमें सीधा उसको चाहिए और आप दे रहे हो, क्लियर, राइट। हमारे नॉर्मली नखरे कब होते हैं, जब हमें भूख नहीं लगती है, भूख नहीं होती है तब। जब भूख होती है तो कुछ भी आया सामने हम लोग खा जाते हैं, ये वैसा है, राइट। अगर आपने उसको 3 BHK फ्लैट चाहिए और अगर आपने सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, वो ले लेगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि लेना है कि लेना है, आई एम इन द डायलेमा कि देखेंगे। तो आप कितना भी मुझे कन्विंस करो, मैं शायद नहीं भी ले सकता हूँ, एग्जैक्टली ये वैसा। क्लियर है फ्रेंड्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको सभी पेड एड्स में ध्यान में आएगा। जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे तो आपको इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको आपके दिमाग में ये तैयार किया कि सेल्स फनल कैसे बनाई जाती है, ठीक है। ओके, चैट जीपीटी में आपको क्या क्वेरी है, कैन यू जस्ट टेल मी, जिसने भी ये कमेंट लिखी है। यस यादव, दिनेश, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज, आपको क्या क्वेरी है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज व्हेन, आप कब ऐड दिखाना चाहते हो, राइट। सो आप ये हो सकता है कि शुरू में सभी टाइम और डेज पर ऐड दिखाओ,
बट यू हैव सफिशिएंट सैंपल साइज। जब आपके पास सफिशिएंट सैंपल साइज है, सैंपल साइज नॉर्मली 100 यूजर्स की होनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट? सो अगर मेरे पास ऐसा डेटा आया, राइट, लेट मी जस्ट गिव यू वन हाइपोथेटिकल एग्जांपल टू जस्ट गिव यू द आइडिया दैट व्हाट आई एम सेइंग। सपोज मेरे पास ऐसा डेटा है, यस यस हर्षद, गौरी हर्षद, यस, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यस, आप पूछ So सकते हो। regarding the sales funnel, I had a question regarding the sales funnel. यस यस, बताइए बताइए। So what you implied, what I understood is when you're doing or Google Ads, you're just targeting on the conversion part. You're not targeting on the awareness and like कंसिडरेशन, sales and the conversion. करेक्ट। Yeah. So you are just targeting on the conversion, not the first two elements of the sales funnel, like awareness and the consideration. वो कब जरूरी है, वो सबसे पहले आप समझो। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब Okay. आपकी ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट लेनी है कि नहीं लेनी है वो आपको पता नहीं है। जब आपको कंफर्म पता है कि अगर कोई यूजर 3 BHK फ्लैट से सर्च कर रहा है यहाँ पर, तो उसका सिंपल क्लियर कट है, उसको जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो वो लेना है। बट व्हेन यू आर डूइंग द सेम ऑन सोशल मीडिया और डिस्प्ले नेटवर्क, राइट, सपोज आप यूट्यूब पर ऐड दिखा रहे हो, तो यू आर नॉट श्योर कि उसको लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि यूट्यूब में किसी को 3 BHK फ्लैट्स लेना है तो वो सर्च नहीं करने वाला, राइट? वो ये सर्च Right. करता है कि भाई 3 BHK फ्लैट लेते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से 3 BHK फ्लैट्स में आपको कौन कौन सी एमिनिटीज रखनी चाहिए, वो ये सर्च कर सकता है, राइट? तो वो ऑडियंस हुई। यू आर नॉट श्योर कि उसको एग्जैक्टली लेना है, तो वो केस में आप उसको इधर अवेयरनेस या कंसिडरेशन के फेज में रहकर टारगेट कर सकते हो या वीडियो दिखा सकते हो, व्हाटएवर। लेकिन गूगल सर्च में जब आप टारगेट कर रहे हो तो सीधा वो कन्वर्जन के लेवल पर आया है, राइट? क्लियर गौरी? Okay. Yeah. Okay. Thank you. ओके वेलकम। सो ये है फ्रेंड्स कि कहां पर थे हम लोग? हाँ, ये मैं दिखा रहा था। सपोज संडे को ये डेटा सारे आपको मिलेंगे गूगल एड्स में। यू विल फाइंड ऑल दिस डेटा इन गूगल एड। सपोज आपको संडे में 100 यूजर्स आए हैं और 5 लोगों ने लीड दी है, ठीक है? इसमें समझ लो कि भाई 75 यूजर्स आए हैं और यहाँ पर इसका कन्वर्जन रेट मैं बताता हूँ, सॉरी, इसका कन्वर्जन रेट है 5%, ठीक है? 75 यूजर्स आए और इसका कन्वर्जन रेट है समझ लो 3%, ठीक है? ट्यूसडे में आए हैं 150 और इसका है 2%, ठीक है? ये सपोज डेटा है आपका। अभी मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि भाई 2 सिनारियो है। पहला सिनारियो है कि क्लाइंट नंबर ऑफ लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड्स। तो कई टाइप के बिजनेस कैसे होते हैं कि भाई उसकी टिकट साइज बहुत छोटी होती है, सॉरी, टिकट साइज बहुत बड़ी होती है, राइट? अगर उसका एक प्रोडक्ट उसकी 50 लाख में बिक रही है फॉर एग्जांपल, या 1 CR में 3 BHK फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसको 150 में लीड आए, सॉरी 10,000 में लीड आए कि 5,000 में लीड आए, 10,000 में 1,000 में इंक्वायरी कन्वर्जन मिले उसको, 5,000 में मिले कि 7,000 में मिले, मोर और लेस उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है? बिकॉज अल्टीमेटली उसका जो ROI है ना वो पॉजिटिव ही है सभी कॉस्ट पर लीड में। 1,000 रुपए की कॉस्ट पर लीड में भी उसका ROI पॉजिटिव है, 5,000 की कॉस्ट पर लीड में भी उसका ROI पॉजिटिव है और 7,000 की लीड में भी उसका ROI क्या है? पॉजिटिव है। तो वो सिनेरियो में आपको अगर वो 2% भी कन्वर्जन रेट दे रहा है तो आपको ऐड दिखाना बंद नहीं करना है, right? Because ultimately whatever the cost per lead is for a particular day, ultimately client is generating the ROI। एक सिनेरियो हम लोग लेते हैं कि भाई ट्यूसडे को उसने बंद कर दिया है, स्टॉप शोइंग एड्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 150 मल्टीप्लाई बाय 2%, मानी कितनी इंक्वायरी हुई? 3 इंक्वायरी हुई। उसको अगर आपने ये दिन पर बंद कर दिया तो क्या होगा? एवरी वीक 3 इंक्वायरी का लॉस होगा। मानी एक मंथ में अगर 4 ट्यूसडे आते हैं तो 12 इंक्वायरी का लॉस हुआ। अगर उसकी 12 इंक्वायरी में से एक कन्वर्जन होता है फॉर एग्जांपल, तो उसको एक कन्वर्जन का लॉस होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको कब इस पर एक्शन लेनी है? जब कोई भी पर्टिकुलर 2 सिनारियो में आपको एक्शन लेनी है। पहला सिनारियो है कि उसका जो कन्वर्जन रेट है
वो ROI को जस्टिफाई नहीं करता। सपोज यही चीज 7,000 की जगह पर 70,000 होती, तो हो सकता है कि उसके ROI को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। जो इंक्वायरी ट्यूसडे की कन्वर्जन रेट से आती है उसकी बात कर, तब आप उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो लीड आएगी तो भी वो ROI को जस्टिफाई नहीं कर सकती, नहीं करती है तो यू मस्ट स्टॉप इट। एंड नंबर टू कि क्लाइंट का जो बजट है, राइट, वो पूरी मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं कर रहा है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन लिटिल बिट डिटेल। सपोज 100 लोग 3 BHK फ्लैट्स के लिए गूगल पर सर्च कर रहे हैं, 100 लोग 3 BHK फ्लैट्स के लिए गूगल पर सर्च कर रहे हैं। अभी आपका मार्केट शेयर है सिर्फ 30%। व्हाट डज इट मीन? आपका जो बजट है वो 100 लोग जब सर्च करते हैं उसमें से 30% ऑडियंस को एड दिखाने में ही खर्च हो जाता है। क्लियर? मार्केट शेयर पता लग गया। अभी ट्यूसडे को मेरा 2% कन्वर्जन रेट है, मेरा मार्केट शेयर सिर्फ 30% है, और मैं यहां पर बंद करता हूं, तो इसके जो पैसे बचेंगे ट्यूसडे की एड को दिखाने में, वो कहां पर स्पेंड होंगे? रिमेनिंग डेज में। यस और नो? समझ रहे हो? और रिमेनिंग डेज में आपका कन्वर्जन रेट नॉर्मली ट्यूसडे से ज्यादा है। मानी क्या होगा? लीड आपकी कम होगी? नहीं होगी, क्योंकि 30% ही मार्केट शेयर है, 70% तो अभी आप एड दिखाते ही नहीं हो। तो वो 70% जो आपका मार्केट शेयर बचा, वो आइदर संडे में या मंडे में या वेडनेसडे में यूटिलाइज हो जाएगा। और वो यूटिलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर हमें कितनी इंक्वायरी का नुकसान हो रहा है? 12 इंक्वायरीज का। लेकिन यहाँ पर वही बजट हम लोग डालेंगे, अगर यहाँ पर 150 क्लिक आएगी तो कितनी लीड मिलेगी? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, मानी 30 इंक्वायरी। 12 इंक्वायरी का नुकसान, 30 इंक्वायरी का फायदा, मानी कितना फायदा ओवरऑल हुआ आपको? 18। समझे आप? तो जब आपका मार्केट शेयर 80% से कम है, when your market share is less than 80%, you should stop showing ads, right, with the lowest conversion rate on the days. क्लियर? ये जो चीजें हैं, जब आप 4-5 प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये फंडामेंटल्स है। ये फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के अगर आपने काम किया तो कोई भी कैंपेन में जो काम कर रहा है उससे ज्यादा आप उसको लीड निकाल कर दे दो, क्योंकि पहले वो क्या कर रहा था? यहां पर ऐड दिखा रहा था। आपके पहले जो काम कर रहा था, सपोज क्लाइंट कर रहा था, उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो वो क्या कर रहा था? ट्यूसडे को भी ऐड दिखा रहा था, और उसको कितनी लीड आती थी? उसके अपने बजट में 12 इंक्वायरी। आपने काम हाथ में लिया, 1 महीने में आपने उसका चेंज कर दिया, प्रशांत किशोर जैसा, राइट। आपने उसका वो एनालिसिस कर लिया कि भाई कहाँ से वोट ज्यादा मिल सकते हैं, कहाँ से लीड ज्यादा आ सकती है। तो आपने क्या किया? ट्यूसडे को ऐड बंद करो, उसका जो बजट है वो रिमेनिंग डेज में इंप्लीमेंट करो, और क्लाइंट को बोला कि आप जो लीड, जितनी लीड 50,000 में सपोज आप 50 लीड लाते थे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 60 जनरेट करके दी, सो 10,000 का अपफ्रंट आपने क्लाइंट को फायदा कर दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द वैल्यू, एंड दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज द ROI। क्लियर? तो ये क्या डिस्कस हम लोग कर रहे थे फ्रेंड्स? क्या डिस्कस कर रहे थे? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेज एंड टाइम, और यही चीज टाइम में भी आएगी, सेम कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये डेटा आपको सारे मिलेंगे गूगल एड्स में, हम लोग, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे मिलेंगे डेटा। हम लोग लाइव प्रैक्टिकली एक कैंपेन पर काम करेंगे, यू विल हैव द आइडिया, राइट। उसके बाद है डेमोग्राफिक। सो डेमोग्राफिक में लोकेशन है, एज है, जेंडर भी डेमोग्राफिक में ही आता है, लेकिन मैंने उसमें ले लिया है। सो क्या आता है फ्रेंड्स उसमें? डेमोग्राफिक में क्या है? बेसिकली लोकेशन, ठीक है। तो आपको कौन से लोकेशन में टारगेट करना है, ठीक है। और लास्ट इज बजट, लास्ट इज बजट। सो बजट में आपको क्या ध्यान में रखना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज क्लाइंट वुड लाइक टू स्पेंड 25,000 फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप शुरू में ऐड करोगे फ्रेंड्स, राइट, जब आप पहली बार ऐड करोगे तो आपको 20% बजट या 30% बजट है ना, वो एक्सपेरिमेंट में लगाना है। मानिए आपको कोई भी सेगमेंटेशन नहीं करना है, सभी एज ग्रुप को दिखाओ, सभी जेंडर को दिखाओ, सभी लोकेशन तो आपको लेना ही है जो क्लाइंट ने दिया है, राइट, सभी टाइम पर दिखाओ। मानी सेगमेंटेशन जो मैंने अभी बताया आपको वो नहीं करना, राइट। तो 7,500 आपको कैसे स्पेंड करना है? मेजोरिटी ऑफ द लोगों को दिखाना, ब्रॉडर ऑडियंस को दिखाना, उसमें से जो रिजल्ट निकला, जो रिमेनिंग आपके जो पैसे है, राइट, 70%, उसको किसमें लगाना है? जो काम कर रहा है उसको। क्लियर सबको? 30% यू शुड स्पेंड, राइट,
30% जब आपको स्पेंड कर रहे हैं तो ब्रॉडर ऑडियंस को दिखाओ। उसमें से जब आप 70%, उसमें से जो रिजल्ट आकर निकला, आपको पता लगा है कि भाई 18 to 25 वाले लोग कभी फ्लैट नहीं लेने वाले, क्योंकि अभी वो दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर करियर, और वो 1 ईयर का बजट कहाँ से लाएंगे? तो आपने क्या किया, अप टू 30 फॉर एग्जाम्पल, अप टू 30 आपने ऐड दिखाना, मतलब वो डेटा आपको कहाँ से मिला? ये 7,500 स्पेंड करके। एग्जाम्पल है ये, 30% का एग्जाम्पल है, राइट? ये 75,000 भी हो सकता है उसका 30%, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट बजट। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? 30% बजट यू शुड स्पेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट, एंड रिमेनिंग 70% बजट यू शुड स्पेंड ऑन द सेगमेंट विच इज वर्किंग, राइट? लोकेशन में भी ऐसा हो सकता है, सपोज आपका पाल्टी में है 3 BHK, राइट? तो क्या होगा, नॉर्मली जो पुल की उस साइड वाले लोग हैं वो नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो आप वो पिन कोड से जान सकते हो कि भाई ये पिन कोड वाले आते तो है, मानी क्लिक करके पैसे तो, आई मीन यू हैव टू पे टू द गूगल व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड, लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्जन मिलता नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको वो इनसाइट जब आपकी जनरेट हुई तो वो एरिया के जितने भी पिन कोड है, भले ही आपने अहमदाबाद लिया उसको एक्सक्लूड कर देना। क्लियर है सबको? वेरी गुड। ये फंडामेंटल ऑफ पेड मार्केटिंग में किसी को कोई क्वेश्चन है? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस, ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया, ब्रांडिंग, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। ओके, 2 टाइप के मार्केटिंग है, एक है फ्रेंड्स इनबाउंड मार्केटिंग और दूसरा है आउटबाउंड मार्केटिंग, राइट? ये फंडामेंटल है। इनबाउंड क्या है? यस, कोई बताएगा व्हाट इज इनबाउंड? यहां पर तो लिखा ही है, अगर किसी को पता है। यस, व्हाट इज इनबाउंड एंड व्हाट इज आउटबाउंड? चलो, सिंपल है, सामने वाले को चाहिए और आप परोस रहे हो, इट इज इनबाउंड। यू डोंट नो वेदर द अदर पर्सन नीड दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट, और आप उसको बता रहे हो, तो आउटबाउंड, राइट? जब आप सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हो और आपको जो ऐड दिखती है वो क्या है, इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? आउटबाउंड। यू डोंट नो दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड दैट थिंग्स और नॉट। आउटबाउंड। आपने 3 BHK के लिए सर्च किया और आपको ऐड दिखी, वो क्या है? इनबाउंड। क्लियर कंसेप्ट हो गया इनबाउंड आउटबाउंड का? वेरी सिंपल, राइट? सामने वाले आपके जहां पर वो जो पैम्पलेट लेकर बांटने के लिए आता है, वो क्या है, इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? आउटबाउंड है। जब आपको प्रमोशनल कॉल आते हैं तो क्या है? ये सारा प्रमोशनल आउटबाउंड। में जाते हैं, वो क्या है? आउटबाउंड। राइट, राइट, वेरी गुड। तो नॉर्मली इनबाउंड में एक ही बचा और वो है गूगल सर्च, राइट? गूगल सर्च इज द ओनली प्लेटफॉर्म, इसीलिए इसकी बहुत बेहतरीन काम है उसका, राइट? बहुत बेहतरीन उसकी वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद सेल्स फनल, वो मैंने आपको सेल्स फनल एक्सप्लेन की, राइट? सपोज 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 हाँ, अभी राखी, रक्षाबंधन आएगी, ठीक है? अगर किसी का भाई या बहन, सपोज किसी की बहन यूएस में है और उसका भाई इंडिया में है, या वाइस वर्सा है, व्हाटएवर, राइट? तो आप कैसे कैंपेन चला सकते हो कि भाई एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट ऐसे वो ऑडियंस आती है, मानी आप वो पहले यहाँ पर थे अभी बाहर है, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं ऑडियंस के मामले में। तो आप ऐसी ऑडियंस को सबसे पहले अवेयरनेस कर सकते हो कि भाई आप हाँ, रक्षाबंधन रक्षाबंधन के दिन पे आप आपके भाई को जो भी उसमें आता है वो करना चाहते हो, राखी बांधना चाहते हो या भेजना चाहते हो, राइट? तो आपने सबसे पहले उसको अवेयरनेस किया, उसके बाद उसको बोला कि भाई वी हैव द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट डील फॉर यू, राइट? और उसको सीधा कन्वर्जन में लेकर जा सकते हो, राइट? पहले कंसिडरेशन और उसके बाद कन्वर्जन, ऐसा आप कर सकते हो, राइट? और उसमें आपको बेहतरीन कन्वर्जन मिलेगा। क्लियर? सो जब आप फनल क्रिएट कर रहे हो ना, तो फनल में यू हैव टू गिव द टाइम टू दैट मशीन, राइट? या तो आपकी ऑडियंस को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मानिए अगर कोई भी पर्टिकुलर डे आ रहा है, राइट? जैसे कि रक्षाबंधन आ रही है, उसके बाद सपोज धनतेरस आ रही है या व्हाटएवर, नवरात्रि आ रही है, तो वो सभी में आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। मानिए अगर आज नवरात्रि सपोज शुरू होने वाली है और आप कुछ बेच रहे हो उसके रिलेटेड, तो आपको 1 महीने पहले उसकी एड दिखाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले 1 वीक आपने अवेयरनेस की, उसमें से जो ऑडियंस ने इंटरेस्ट दिखाया उसको 1 वीक के बाद कंसिडरेशन में डाला, और कंसिडरेशन में जिसने इंटरेस्ट दिखाया उसको तीसरे वीक में कन्वर्जन में डाला। समझ रहे हो? दिस इज हाउ यू नीड टू डू। और लास्ट 2 वीक में कन्वर्जन का कैंपेन चलाया, क्योंकि उसमें बाइंग इंटेंशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। अभी क्या है, सभी लोग लास्ट जो पहले सैटरडे संडे आते हैं उसमें खरीदी करते हैं, राइट? पहले से नॉर्मली नहीं करता है, राइट? तो वो है। सो दैट इज द कंसेप्ट आई हैव रिटन हियर।
ओके फ्रेंड्स, अभी आपको क्या इसमें बनाकर लाना है, आपके ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको मुझे 5 बिजनेस मॉडल के लिए, राइट, वो बिजनेस मॉडल यहां पर मैंने लिखे हैं। ये रहा, टूर्स एंड ट्रैवल, एक मिनट, मैंने हाँ ये रहा, ये बिजनेस मॉडल है। रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, होटल है, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट है, ये सभी के लिए आपको 5W बनाकर लाना है, ये वाला। तो आपका ये 5W वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? आप इसमें से कोई भी 3 के लिए बना सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप सभी के लिए बनाओ, दैट इज एक्सीलेंट, लेकिन मिनिमम 3 के लिए बनाना। हेल्थ कैटेगरी के लिए बनाना, आईटी के लिए बनाना, बना सकते हो, फाइनेंस के लिए, ई कॉमर्स एंड सो ऑन। अगर इसमें से और किसी डोमेन का आपके पास नॉलेज है तो उसके लिए भी बना सकते हो, आई लीव इट एब्सोल्युटली अप टू यू, लेकिन ये असाइनमेंट करे बगैर मत आना, राइट? अदरवाइज 5W का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, इंसाइट नहीं होगी, राइट? यू हैव दैट इंफॉर्मेशन कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट यू डोंट हैव द इंसाइट। क्लियर है? ओके ओके फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना? ठीक है, चलो। हाउ टू कैलकुलेट सीपीसी, राइट? ये हमने ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी फॉर्मूला भी है, तो अगर किसी को ये है कि भाई ये थोड़ा दिमाग में बैठ नहीं रहा, तो इट इज परफेक्टली फाइन, आप सीधा फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले जो एक्सप्लेन किया था ना, एग्जैक्टली वो है। चलो फिर से मैं ये कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। सपोज मुझे यूरेका फॉक्स का वैक्यूम क्लीनर बेचना है, राइट, ऑन दी थर्ड पार्टी वेबसाइट, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वेदर इट इज अमेजॉन, वेदर इट इज फ्लिपकार्ट, वेदर इट इज गूगल एड्स, व्हाटएवर। सपोज हम लोग गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको सर्च कर रहा हूं। एसी बंद करूं? कूलिंग नहीं जरूर થઈ ગયું છે ઓકે એક મિનિટ હો સ્વિંગ નહીં જરૂર ને સ્વિંગ હોય ને તો ના થાય છે સ્વિંગ તો થાય ઓકે વધારે ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको ऐड दिखी, ये शॉपिंग ऐड है, दिस इज शॉपिंग ऐड, ठीक है, दिस इज शॉपिंग ऐड, दिस इज सर्च ऐड, ठीक है फ्रेंड्स। अभी अभी मैं आपको एक सिनारियो बताता हूं कि सपोज इसकी सेलिंग प्राइस है 11,500, जस्ट टेक इट फॉर हाइपोथेटिकल, राइट? क्लाइंट ने आपको बताया ये तो आपको मिल जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 6,000, माने उसका प्रॉफिट जब आप एक प्रोडक्ट बेचते हो तो कितना होता है ऑन एन एवरेज? 5,500, यस और नो, राइट? अभी आप ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट पर इसको बेच रहे हो, राइट, और योर कन्वर्जन रेट इज 2%, राइट? ई कॉमर्स के केस में आपको कन्वर्जन 1% नॉर्मली मिलेगा, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ई कॉमर्स के केस में हो, मैं सर्विस के केस में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज सर्विस के केस में जो लीड मिलेगी वो सभी कन्वर्ट होने वाली नहीं है, ई कॉमर्स में वो कन्वर्ट होगा, दैट इज द डिफरेंस। समझ में आ रहा है सबको, राइट? अगर ई कॉमर्स में आपने बेचा, मानी वो इट हैज बीन सोल्ड ऑलरेडी, बट इन द केस ऑफ सर्विस 5 लोग लीड देंगे, उसमें से कुछ लोग परचेस करेंगे, इसीलिए सर्विस का लीड रेट हमेशा क्या है? ज्यादा होगा, राइट? राइट, जैसे कि अगर आप कोई भी जगह पर जाओ, कोई भी मॉल में जाओ, रिलायंस डिजिटल में जाओ, देखने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन परचेस करने वाले उसमें से कुछ ही होते हैं, राइट? ये वैसा है। ओके, सो 2% विल बी योर लीड रेट, सॉरी कन्वर्जन रेट। मानी 100 लोग जब आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, राइट, 100 लोग ने ऐड को देख के यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया। सपोज आप क्रोमा हो, सपोज समझ लो, और आप क्रोमा में जॉब कर रहे हो, और दे हैव गिवन यू एज अ गूगल एड्स एक्सपर्ट, और आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, राइट? तो क्या होगा? 2% इज योर कन्वर्जन रेट, मानी 100 लोग जब आपकी एड पर क्लिक करेंगे तो 2 लोग क्या करेंगे? बाय, परचेज करेंगे, मानी 100 क्लिक पर आपको कितना प्रॉफिट होता है? 11,000 का,
एक प्रोडक्ट जब आपकी सेल होती है तो 5,500, दो प्रोडक्ट सेल हुई तो 11,000, सिंपल। मानी आप एक क्लिक पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? एक क्लिक पर 11,000 को 100 से डिवाइड कर देना है, मानी 100 रुपए। लेकिन आपको 100 के 100 रुपए उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ रिटर्न आया, राइट, कुछ लोगों ने रिटर्न दिया, तो वो सारी मिसलेनियस कॉस्ट है। जब आप बिजनेस चला रहे हैं ना, तो आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो सभी को आप 100% प्रॉफिट के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव मैनी मिसलेनियस कॉस्ट जो आपको पता भी नहीं है कि ये हो सकती है, राइट। इसी बंद हो गया आज, राइट, या तो सिस्टम बंद हो गई, तो ये सारे आपके मिसलेनियस कॉस्ट है। तो जितना भी प्रॉफिट है उसमें से 10% क्या करना है आपको, एज अ मिसलेनियस कॉस्ट के तौर पर निकाल देना है आपके प्रॉफिट में से, राइट। तो आपको कितना री इन्वेस्ट करना है, या तो आपको एज अ प्रॉफिट के तौर पर कितना गिनना है, 0.9, राइट। सो मैंने क्या किया, 100 रुपए की जगह पर मैंने 99 गिना, मानी 99 रुपीज जो है वो मैंने ये मेरा पर क्लिक का प्रॉफिट है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अभी तक के एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई क्वेरी है तो वो बोल सकता है। 11,000 100 क्लिक पर हमारा था, सो हम लोग क्या करेंगे, 11,000 डिवाइडेड बाय 100, ये गलत था, मल्टीप्लाई बाय 0.9, हाँ 99 सही है, क्लियर है। सो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, एक क्लिक पर मुझे 99 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो मेरी सीपीसी कितनी होनी चाहिए? गूगल एड्स पर व्हेन समवन क्लिक ऑन माय एड, व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट आई शुड पे टू द गूगल? मेरे आरओआई को पॉजिटिव रखना है तो मुझे कितनी अमाउंट गूगल को देनी चाहिए? लेस देन 90, लेस देन 99। लेस देन 90। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एक चीज समझो, इसकी ब्यूटी क्या है पता है? नॉर्मली आप दुनिया में कोई भी टाइप का मार्केटिंग करो, ये चीज समझ लेना, हाँ, व्हाई गूगल एड्स इज वेरी पॉपुलर। दुनिया में आप कोई भी टाइप का मार्केटिंग करोगे ना, आपको मार्केटिंग करने से पहले कोई प्रॉपर प्रोजेक्शन नहीं होता है कि ये कैंपेन आपका आरओआई पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा। आप दिव्य भास्कर में ऐड किया है, आपने दिव्य भास्कर में ऐड की है, आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि उसमें आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सिर्फ क्या बताएगा, इतने लोगों की कॉपी पहुंचेगी, ये लोगों तक ये एरिया में आपकी एड दिखेगी, बट दे कैन नॉट टेल यू दैट हाउ मेनी लीड्स यू आर सपोज टू रिसीव, दे कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी कन्वर्जन यू कैन एक्सपेक्ट। समझ रहे हो? ये चीज आप गूगल से संभव है। बिफोर यू पे एनीथिंग टू द गूगल, यू कैन कैलकुलेट on the basis of three variables: CPC, number 2, conversion rate, right? CPC एंड कन्वर्जन रेट से आप कर सकते हो, उसको मिला के आरओआई बनता है। सो ये दोनों से आप कर सकते हो कि आपको ये सीपीसी एंड कन्वर्जन रेट आपके पॉजिटिव आरओआई को जस्टिफाई करेगा कि नहीं। अगर मैंने 99 रुपीज से जितने कम में सीपीसी लाया उतना मेरा प्रॉफिट, और 99 रुपीज से ज्यादा देना ही नहीं, क्योंकि 99 रुपीज से बड़ा मेरा आरओआई नेगेटिव चला जाता है। क्लियर है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी हम लोग दूसरा सिनेरियो लेते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी है सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? राइट। नंबर 2, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन, माने एक लीड लाने में आपको कितना पैसे खर्च करना है। ये क्या था? कॉस्ट पर क्लिक। ये है कॉस्ट पर एक्विजिशन, मानी हमने कितने एक्विजिशन हुए 100 क्लिक पर? 2। मानी कॉस्ट पर एक्विजिशन अगर मुझे गिनना है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्विजिशन, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 11,000 डिवाइडेड बाय 2, मानी कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरा कितना होना चाहिए? 11,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5,500, राइट। कॉस्ट पर एक्विजिशन इज सिंपल योर प्रॉफिट, नथिंग, बट उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मिसलेनियस कॉस्ट है। वेरी गुड। तो ये हुआ 4,900, इनिशियल कॉस्ट। राइट। ठीक है। ये चीज गूगल एड्स की एग्जाम में इसके रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट। गूगल एड्स की जब हम लोग लास्ट में एग्जाम हम लोग कंडक्ट करेंगे, सो इसके रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रनिंग द एड्स ऑन द गूगल। ठीक है। और वो सर्टिफिकेट आप सब लोगों को बहुत काम में आएगा व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग, राइट। ओके। उसके बाद दूसरा सिनारियो लेते हैं, ये ई कॉमर्स का सिनारियो।
अभी हम लोग इसका सिनेरियो ले रहे हैं सर्विस वेबसाइट का। समझ लो, सपोज 19,000 जो है वो ट्रेनिंग की कॉस्ट है। ट्रेनिंग के एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारी जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो 10,000 है, अज्यूम करो। 19,000 है, वो क्या है, हमारी ट्रेनिंग की फीस है, कोर्स फीस है। और 10,000 है वो हमारा प्रॉफिट है, राइट, सॉरी हमारी कॉस्ट है। सो हमारा प्रॉफिट हुआ 9,000। मानी जब नॉर्मली इन जनरल, कई बार ये भी हो सकता है ज्यादा कैंडिडेट है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, कम है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, ये एवरेज है। सो समझ लो कि ऑन एन एवरेज हमारा प्रॉफिट, जब एक कैंडिडेट एनरोलमेंट करता है तो 9,000 इज द प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल। सो ये यहां तक सबको क्लियर। अभी 100 लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं ट्रेनिंग इन एसईओ को, तो ऑन एन एवरेज मुझे 5 लोग इंक्वायरी देते हैं, राइट, दैट इज लीड रेट। उसमें से 40% मेरी ट्रेनिंग लेते हैं। आफ्टर लीड कन्वर्जन रेट, आफ्टर मेरी 10 इंक्वायरी आएगी तो कितनी कन्वर्ट होगी? वेरी गुड, ठीक है। सो मानी तो मेरा 100 के बेसिस पर कितना कन्वर्जन हुआ? 2 का। 5 लोग इंक्वायरी देंगे, 5 में से 40%, मानी 5 मल्टीप्लाई बाय 40%, दैट इज 2। 2 लोग मेरी ट्रेनिंग लेंगे। यहां तक क्लियर? इसमें 2 फेज आए, लीड एंड आफ्टर लीड कन्वर्जन। ई कॉमर्स में एक ही फेज था, डायरेक्ट कन्वर्जन। सबको समझ में आ रहा है ना? सर्विस का 2 लोग, मानी 100 जब लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो ऑन एन एवरेज मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 18,000 18,000। 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एक के कन्वर्जन पर 9,000, 2 के कन्वर्जन पर 18,000। तो 100 लोग जब मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो मुझे ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट होगा? मल्टीप्लाई बाय 0.9 किया इसलिए, अदरवाइज 180 होता। क्लियर? तो मैं एक क्लिक के लिए गूगल को मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? लेस देन और इक्वल टू 162। 162 ज्यादा नहीं, उतने जितने कम में मैं सीपीसी लाया उतना मेरा आरओआई ज्यादा। क्लियर है सबको? ठीक है। सिमिलरली ये कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन में आपको जितना प्रॉफिट हुआ 18,000, उसको किससे डिवाइड करना है? 5 से, कन्वर्जन रेट से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट पर एक्विजिशन, मानी एक इंक्वायरी जनरेट करने के लिए व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट यू वुड लाइक टू पे। दिस इज बिडिंग स्ट्रेटजी। जब आप गूगल पर जाओगे तो दे विल गिव यू मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटजी विद विच यू वुड लाइक टू शो योर एड्स। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है और सीधा कन्वर्जन रेट निकालना है तो सीधा यहां से निकाल सकते हो, राइट। अगर प्रोडक्ट का आपको कन्वर्जन रेट निकालना है तो कुछ नहीं करना है। व्हाट इज फर्स्ट थिंग? एवरेज प्रॉफिट पर सेल। एवरेज प्रॉफिट पर सेल क्या है? 5,500 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या था हमारा? 2%। सर्विस के केस में 5%, 2% के केस में तो 1% आया तो भी बहुत है, राइट। एंड मल्टीप्लाई बाय 0.9 आ गया 99, जो हमने यहां पर किया था। ये फॉर्मूला है, राइट। लेकिन मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं बताई? आप रट लेते इसको, समझते नहीं यहां से, राइट, कि भाई क्यों ये करना है, ये इसलिए करना है। ठीक है। एंड सिमिलरली सर्विस वेबसाइट। चलो, सर्विस वेबसाइट में हमारा आइडियल मैक्सिमम, सॉरी, हाँ, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है पर सेल? वेरी गुड। 9,000 विजिटर लीड रेट क्या है फ्रेंड्स? वेरी गुड। 5% उसमें आफ्टर लीड कन्वर्जन रेट क्या है? 4% नहीं 40 है। 10 40 आते हैं, 4 इंक्वायरी, 10 इंक्वायरी आती है, 4 लोग ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, 40 और मल्टीप्लाई बाय मिसलेनियस कॉस्ट आ गया 162। ठीक है, क्लियर, राइट। सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आप गूगल एड्स की जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ से जाना है। ठीक है, अदरवाइज आधे क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपके। ओके, उसके बाद आरओआई कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। सपोज आपको कितना प्रॉफिट हुआ माइनस आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी हुई, डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। प्रॉफिट अगर सपोज मैं यहां पर, चलो हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक है हमारी 70 रुपीज। ठीक है, तो पर क्लिक प्रॉफिट कितना हुआ? 29, यस और नो? ठीक है, क्योंकि 99 हमारी
मैक्सिमम पर क्लिक की प्रॉफिट है, लेकिन हमने कितना दिया, 70 ही दिया गूगल को, मानी 29 इज द प्रॉफिट वी यूज टू जनरेट व्हेन समवन क्लिक ऑन द एड, ठीक है। और ये एवरेज है, आप कोई बोल सकता है कि ऐसा थोड़ी होगा हर एक क्लिक पर आपको 29 मिलेगा, सही बात है, नहीं मिलेगा। कुछ क्लिक पर 33 भी मिल सकता है, कुछ क्लिक पर 25 भी मिल सकता है, कुछ क्लिक पर 20 भी मिल सकता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू एवरेज दिस ऑल दिस सीपीसी यू विल कम टू दिस अराउंड दिस नंबर, क्लियर। सो प्रॉफिट माइनस मार्केटिंग कॉस्ट कितनी हुई हमारी, राइट, यहां पर ही था ना, प्रॉफिट माइनस मार्केटिंग कॉस्ट। तो कितने रुपए हमने स्पेंड किए, 70 रुपीज हमने स्पेंड किए, ठीक है। नहीं ये तो जगह अगर हम लोग 70 नहीं, ये देख लेता हूँ, रियल आरओआई, ओके, मुझे है ना यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रेवेन्यू लिखना पड़ेगा, बिकॉज इफ इट इज प्रॉफिट तो मैंने प्रॉफिट, ओके उसमें, ओके प्रॉफिट के केस में मैंने मार्केटिंग कॉस्ट को नहीं गिना, इसलिए आया है रिटर्न ओनली प्रॉफिट, समझ रहे हो आप। तो इस पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, 99, क्योंकि मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, समझ रहे हो। ये जो 29 70, ओके चलो मैं इजी मेरा कितना प्रॉफिट है फ्रेंड्स, 99 रुपीज का है, 99 माइनस मेरी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, 70 डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, या इसको परसेंटेज में गिन लो। परसेंटेज कहाँ पर है, ये रहा, राइट। मानी 100 रुपए जब क्लाइंट इन्वेस्ट करता है तो उसको ऑन एन एवरेज 9800 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होता है या प्रॉफिट होता है, तो ये एक्सीलेंट है, ये करना चाहिए, राइट। मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया ना, ओके यस यस, वो भी लोग भागवत सबान और रिलेशन में तो फोटो लगा देता हूँ, राइट। इंग्लिश में मुझे पता नहीं है, सो ये है 41.43% उसको हुआ आरओआई। कैसे आरओआई कैलकुलेट करना है सबको पता लग गया, सिंपल है। अगर मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूं, जब आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितने रुपए आप बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड आरओआई। अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 2 रुपए एज अ प्रॉफिट के तौर पर मिल रहे हैं, राइट, तो 200% इज योर आरओआई, 200, क्लियर है सबको। 1 रुपए बना रहे हो तो 100%। बैंक हमें कितना कितना आरओआई देता है, बैंक में अगर आपने रुपए रखे हैं सेविंग अकाउंट में तो व्हाट इज दी आरओआई बैंक इस सब कितना दे रहा है, 3 to 4%, 3 to 4%. 3 to 4%, राइट। और एफडी में रखा है तो 7%, 7 to 8, 7 डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड योर एज, ठीक है। सो ये according to age रहता है, I think. करेक्ट, अकॉर्डिंग टू एज रहता है, सही बात है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बैंक, बहुत सारे वेरिएबल है, ठीक है, ओके। मगर बहुत कम रहता है. It's very less. इट इज वेरी लेस, यस करेक्ट, यू आर राइट, इसीलिए Saving FD में जो इंटरेस्ट मिलता है, it's very less. इट इज वेरी लेस, और उस पर भी आपको इनकम टैक्स लगता है, हाँ. राइट। उस पर भी अगर आप वो टैक्स के क्राइटेरिया में आ रहे हो तो दे आर गोइंग टू, ओके ओके फ्रेंड्स। तो यहां पर आ गए हम लोग, आरओआई हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी एक देखो, अभी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ कि गूगल जो है, राइट, सपोज मैं यहां पर आपको सिनारियो देता हूँ, ये है फ्रेंड्स, मैं 3 BHK फ्लैट्स पर आ जाता हूँ पहले, क्योंकि वो ज्यादा आसान है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अभी कितनी एड दिखी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर, 3 एड दिखी, तीनों के तीनों मानी एड दिखी, मानी गूगल को पैसे देने वाले हैं, यस और नो, अदरवाइज गूगल कैन नॉट शो दिस एड्स इन दी स्पॉन्सर्ड विद द स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, करेक्ट। तो भी गूगल ने क्यों ऐसा किया, ये यूनिक एंड इंट्रा स्पेस को तीसरी पोजीशन पर दिखाया, 99 एकर्स को दूसरी पोजीशन पर दिखाया, एंड गोयल एंड को पहली पोजीशन में, ऐसा क्यों, व्हाई इट इज लाइक दैट, राइट, क्यों, उसका आंसर अभी आपको यहां पर मिलेगा। तो उसमें 2 क्राइटेरिया है। गूगल ने जब एड्स की शुरुआत की आज से 15-20 साल पहले, तो उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के बेसिस पर, मानी बिड, दिस कॉल्ड बिड। जब भी आप कोई भी गूगल पर ऐसे सर्च करते हो ना, तो उसमें ऑप्शन होता है, ऑप्शन पता है किसी को, राइट।
શું કહેવાય એને પેલું ગુજરાતીમાં? हाँ, हराज यार। जब आप गूगल पर ऐड करते हो ना, तो वो ऑक्शन होता है, और ऑक्शन में क्या होता है, दो चीज पर वो लोग डिसाइड करते हैं। पहला है बीड और दूसरा है आपका क्वालिटी स्कोर। नॉर्मली हराजी में क्या होता है, किसके ऊपर वो डिसाइड होता है? बीड के ऊपर। बीड के ऊपर से जितने ज्यादा पैसे दिया वो जो भी बेच रहा है वो लेकर जाएगा। इसमें गूगल ने सिर्फ बीड को नहीं कंसीडर किया। गूगल इज वेरी स्मार्ट, राइट? गूगल इज वेरी स्मार्ट। क्यों स्मार्ट है पता है? क्योंकि वो सस्टेनेबल स्ट्रेटजी बना। जब आप सिर्फ बीड को रखोगे तो क्या होगा, और क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखोगे, तो ऐसे एडवर्टाइजर्स हमेशा टॉप में आएंगे जिसकी क्वालिटी घटिया है, पास्ट एक्सपीरियंस यूजर का घटिया है, बट they are coming on the top of the Google because of bid, because of money. तो गूगल ने उसके साथ में और एक वेरिएबल को जोड़ दिया, एंड दैट इज क्वालिटी स्कोर। क्योंकि गूगल को पता था कि अगर हम लोग क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, हमारा ग्राफ कभी ऐसे नहीं जाएगा कंटिन्यूअस। तो उसने सस्टेनेबल स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज को ध्यान में लिया, बीड एंड क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चार चीजों को गूगल क्वालिटी के स्कोर के तौर पर कंसीडर करता है, एंड दैट इज द रीजन दैट यू सी गोयल एंड को एट द फर्स्ट, 99 acres at the second level, and Unique Intraspace Private Limited at the third position. So क्वालिटी स्कोर में क्या आता है? सबसे पहले आता है आपकी एड रिलेवेंसी। मानी आपने जिससे सर्च किया है और नीचे जो ऐड दिख रही है, या तो आपने जो ऐड बनाई है उसकी रिलेवेंसी क्या है, राइट? रिलेवेंसी का इंटरप्रिटेशन है कि वो कीवर्ड आपकी ऐड में है कि नहीं है, उसकी आसपास के जो वर्ड्स है वो आपकी ऐड में है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंसी। रिलेवेंसी, ऐड रिलेवेंसी। नंबर 2, ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये है एड्स एक्सटेंशन। यहां पर ऐड खत्म हो जाती है। यूआरएल, दैट इज लैंडिंग पेज का यूआरएल, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, राइट? यहां पर आपकी ऐड क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसके नीचे जो दिख रहा है ना, ये एक्सटेंशन। सो दूसरा क्वालिटी स्कोर में कौन रोल प्ले करेगा फ्रेंड्स? एड्स एक्सटेंशन। क्लियर? When you are clicking on the ad, कितने लोगों को दिखा वर्सेस कितने लोगों ने क्लिक किया, वो दोनों को रेशियो को क्या कहते हैं? CTR, क्लिक थ्रू रेट, राइट? 100 लोगों को आपकी एड दिखी, राइट? अभी हमने ये 2 बार सर्च किया, इसका CTR क्या होगा? गोयल एंड को का कौन बताएगा? गोयल एंड को का CTR 2%। ओके, हमने 2 बार देखा, एक बार के 2 बार, चलो 1 बार कंसिडर करते हैं। हमने तीनों ऐड को देखा, राइट? और कितनी बार क्लिक की? 0। तो CTR क्या होगा? 0%। 0%। Ad has been shown, but user has not clicked on that ad, right? Impression, clicks divided by impression, click is 0, so CTR will be 0. This is called the paper impression. No, not paper impression. It is वो डिस्प्ले में आएगा, वो डिस्प्ले में वो अलग चीज है। यस, इट इज डिफरेंट थिंग, राइट? जो CPC है वो वही PPC है, माने पेपर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक, व्हाटएवर, ओके, राइट? ओके, तो कहां थे हम लोग? यस, हम लोग थे CTR का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, इसका भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, राइट? CPC, राइट? हम लोग कैसे सीरियस हो जाता है जब मैं बोलता हूँ एग्जाम में आएगा। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, ठीक है? एंड लास्ट, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एड, मैं क्लिक नहीं करूंगा, उसको 150-200 रुपए की लग जाएगी, right? So I would not like to create the cost for this Goel and Co, right? So सर, जो मैं बोल रही थी वो डिस्प्ले में कहाँ पे आता है? डिस्प्ले ऐड कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन उसमें आता है। अच्छा, यस फ्रेंड्स, तो सपोज ये लैंडिंग पेज है, whenever you have clicked on the ad, this is the page open. So इसको क्या कहा जाता है? अगर जो तीसरी चीज गूगल कंसीडर करेगा क्वालिटी स्कोर के तौर पर, वो है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस।
क्लियर है? राइट, ये चार चीजों को गूगल कंसीडर करके क्या डिफाइन करेगा? क्वालिटी स्कोर को डिफाइन करेगा. मोर द क्वालिटी स्कोर, lesser the amount you have to pay to the Google to come at the top. Come at the top. This is how it works. Absolutely, this is how it works. Clear is up to? So, यहां पर मैंने 3 एग्जांपल दिए आप, राइट. सपोज गोयल का भी ले सकते हैं हम लोग, ये तीनों का भी ले सकते हैं, बट लेट अस अज्यूम कि रजिस्टर करो, टैक्सपे एंड बार, ये 3 वेबसाइट है. जो पहली वेबसाइट है वो कितना गूगल को देगी, उसकी भीड़ कितनी है? 99 INR. माने व्हेन समवन क्लिक ऑन द एड रिलेटेड टू वेब डिजाइन इंडिया, रजिस्टर करो वुड लाइक टू पे हाईएस्ट, ये हाईएस्ट अमाउंट है 99 INR टू द गूगल, और उसका क्वालिटी स्कोर कितना है? 6. तो एड रैंक क्या होता है? ये दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बनेगा एड रैंक. एड रैंक क्या होता है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो इसका एड रैंक क्या बना? 19 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 114. जब टैक्स पे है वो कितनी हाईएस्ट अमाउंट देना, ये एमआरपी जैसा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट. कोई भी दुकानदार उससे ज्यादा नहीं ले सकता, कम ले सकता है, राइट. तो गूगल इससे ज्यादा नहीं ले सकता आपसे, इससे कम ले सकता है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू वुड लाइक टू पे, टैक्स पे वुड लाइक टू गिव टू द गूगल? 20. और क्वालिटी स्कोर कितना है उसका? एड रैंक कितना बना? 20 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 100. और तीसरा बार कितना अमाउंट देना जाता है गूगल को मैक्सिमम? सीपीसी क्या है उसकी? 50, और उसका क्वालिटी स्कोर है 8, तो उसका क्या बना? 120. अभी आप देखो किसने भीड़ सबसे ज्यादा की है? सबसे ज्यादा टैक्स पे ने की. और क्वालिटी स्कोर कैसा है उसका? सबसे कम है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वालिटी. और उसी के लिए गूगल एड्स एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये क्वालिटी स्कोर कभी भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बढ़ा सकता. नॉर्मल मानी इसको जिसके बारे में पता नहीं है इतनी गहराई से, या मल्टीपल प्रोजेक्ट पर जिसने काम किया नहीं है, वो नहीं कर सकता. वही कर सकता है जिसने इस पर काम किया है, उसको इसकी क्लैरिटी है, राइट. सो इसीलिए आप सब लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, कि आपको अगर ये पता है कि क्वालिटी स्कोर आप बढ़ा सकते हो, तो आप क्या कर, इनडायरेक्टली आप क्लाइंट को क्या फायदा करोगे? कम सीपीसी में अच्छी पोजीशन टॉप में ला सकते हो. किसने भीड़ सबसे कम की है यहाँ पर? उसकी पोजीशन कैसी आएगी गूगल पर? यस, करेक्ट. क्लियर है फ्रेंड्स? सो इवन दो बार्क इज पेइंग लीस्ट टू द गूगल, द पोजीशन गूगल विल गिव टू बार्क इज नंबर 1. टैक्स पे को नंबर 3, बिकॉज द एड रैंक इज लोएस्ट, और रजिस्टर करो तो. सो ऐसा नहीं है ये हमेशा कि ये वैसा, ये तो मैंने आपको सिनारियो, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिया है. ये भी हो सकता है कि बार्क हमेशा पहले पर रहना चाहता है और वो ज्यादा पे कर रहा है. दैट इज ऑल्सो द सिनारियो. बट आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन टू यू दैट व्हाट इज द रोल क्वालिटी स्कोर इज प्लेइंग व्हेन गूगल इज गोइंग टू डिसाइड कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया? आप ये 3 वेबसाइट, ऐसे 3 कोई भी रैंडम गूगल पर सर्च करके बनाकर मुझे देना, राइट. ये आपको अज्यूम करना है, ये कभी दिखता है, ये और किसी का आप देख नहीं सकते. यू कैन सी फॉर योर एड ओनली. आप आपके कीवर्ड से देख सकते हो आपका क्वालिटी स्कोर क्या है. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम सीपीसी एंड आरओआई? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं. यस, अगर आपको कॉम्पिटिटर की एड देखनी है ना, तो आप गूगल एड्स लाइब्रेरी करके एक ऑप्शन है, गूगल एड्स लाइब्रेरी, right? This is the option with which you can check what the competitors are doing or how they are doing. Sir, here we can also see the how the ad is made and all the information regarding the same. कौन सी इंफॉर्मेशन? मतलब जो एड रन हुई है अभी और जो एक्टिव है वो सब चीजें देख सकते हैं ना. इसमें आप जब ये देखो, आप इधर कीवर्ड या टॉपिक डालोगे ना, इफ यू हाँ. सर्च विद एडवर्टाइजर और वेबसाइट नेम, वो कितनी ऐड कर रहा है ना, वो दिखाएगा. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, जैसे पर्टिकुलर एक कीवर्ड डाल दिया कि हमको ये ऐड चाहिए. मैं वही बोल रहा हूँ, वो कीवर्ड नहीं डालना है. अच्छा, एडवर्टाइजर और वेबसाइट का नाम से ही मिलेगा, ये कीवर्ड से नहीं मिलेगा, अच्छा, ओके ओके, ठीक. राइट. सपोज गोयल एंड को का हम लोग देखते हैं, चलो वो ऐड कर रहा है ना, लेट अस सी. GOYAL,
सर जैसे इसके अलावा भी जैसे ये रियल स्टेट के अलावा भी जैसे हमको एड्स देखनी है, जैसे किसी ज्वेलरी की या किसी और चीज की एड देखनी है, तो वो हम क्या डालेंगे उसमें? वो हम नहीं इससे आता लेना। सर सीओ गोयल का चीज सीओ ओके सी यू डॉट आ जाए गोयल डॉट मार्केटिंग सर्च में डॉट મૂક્યું છે ને ગોયલ એન્ડ સીઓની વચ્ચે એક ડોટ મૂક્યું ओके 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 आ गए आ गई उसकी एड जितनी भी वो कर रहे हैं वो क्लियर so from here you can find that what your competitors are doing ठीक है क्लियर क्लियर आपका क्या क्वेश्चन था सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोग ये वाली ऐड देख रहे हैं, इसके अलावा भी अगर हमको कोई और ऐड देखनी हो तो वो हम कैसे सर्च करेंगे? मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल दे दीजिए इन सेंस। जिस तरीके से ये सर्च किया उस तरीके से और कोई भी बिजनेस के लिए आप कर सकते हो ओके 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 ठीक। मैंने पहले पहले स्टेप में क्या किया 3 के फ्लैट उसकी जगह पर सपोज मैं और कोई काम कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं कौन से हाँ, कीवर्ड पर सर्च करूंगा वही डिजिटल मार्केटिंग कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एजेंट कंपनी। ठीक है। जो दिखा उसको आप सीधा यहाँ पर डालो तो वो जितनी भी ऐड कर रहा है आपको दिख जाएगा ठीक 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 सर। राइट यहाँ से फायदा क्या होगा और भी टूल है एचरेफ से एसईएम रश है लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है ना वो इतनी ज्यादा नहीं That इसकी is why मैं एक्यूरेसी उसको इज recommend- मोर देन दैट तो वन। खुद का प्लेटफॉर्म है ना ठीक है सर। तो वो एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा है ठीक ठीक। ओके सो हाँ ओके अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और वो है टीपीसी क्वेश्चन है तो जब भी आप कोई भी क्लाइंट के लिए काम करो दिस आर द डिटेल्स यू शुड हैव फॉर योर क्लाइंट सर एन एक्स्ट्रा राइट और एडवर्स इंटरफेस ठीक है तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं कोई बात नहीं है एडवर्स इंटरफेस हम लोग कमिंग लेक्चर में ये भी डिस्कस कर लेंगे कोई बात नहीं है दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर ठीक है यहाँ तक हम लोग लिखते हैं रुकते हैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं जितना भी हमने सीखा है वो सर आ मटेरियल હવે સેન્ડ થશે हाँ सर बोलो बोलिए बोलिए आप थोड़ा सा और ये कीजिए ना, ऊपर एक चीज देखनी थी मुझे। हाँ तो यू कैन स्क्रॉल डाउन। ये मैं इसलिए नीचे रख रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर ठीक है चलो सबसे पहले ये पूरे लेक्चर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कोई भी ऐड जब हम लोग करते हैं कोई भी पेड एड्स एड्स मानी पेड ही होता है अदरवाइज वो ऐड नहीं कहलाता तो उसमें गोल क्या रहता है हमारा कौन से गोल के साथ करते हैं हम लोग लीड इधर लीड या कन्वर्जन ई कॉमर्स कन्वर्जन और दूसरा कन्वर्जन रेट नहीं कन्वर्जन ब्रांडिंग वेरी गुड लीड और कन्वर्जन का क्या मैट्रिक्स है कौन सी चीजों को हम लोग मेजर करेंगे आरओआई तो लास्ट वाला है ऑन अ रूटीन बेसिस हम लोग किसको मेजर करेंगे कॉस्ट पर लीड नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ लीड परफेक्ट और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो लीड को किस ई कॉमर्स वेबसाइट है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट पर कन्वर्जन कन्वर्जन और कॉस्ट ऑफ ब्रांडिंग में कौन कौन से मैट्रिक्स रहेंगे कॉस्ट पर एंगेज एंगेजमेंट में क्या आएगा परफेक्ट है कॉस्ट पर एंगेजमेंट नंबर ऑफ वेरी गुड एक्सीलेंट इंटरेस्ट वो आएगा। करेक्ट करेक्ट राइट तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर चलो बेनिफिट क्या है इसका पेड एड का बेनिफिट क्या है व्हाट आर द बेनिफिट्स okay so you can calculate the ROI before investing the money right number two
बेनिफिट क्या है इसका? आप ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो। आप कोई भी और मीडिया टारगेटेड ऑडियंस, डिफाइन तो टारगेटेड आप डिफाइन कर ऑडियंस, सकते हो डेमोग्राफी को, किसको दिखाना है, कौन एरिया से एज वाइज ग्रुप भी को डिफाइन, दिखाना है, कौन से डेमोग्राफिक। एरिया में दिखाना है, कौन से जेंडर को दिखाना है। ये सारी चीज जितना आप अच्छी तरीके से कर पाओगे उतना स्पेसिफिक आपका जा ROI, सकते हैं सर। आपके जो पैसे है ना वो राइट ऑडियंस पर टारगेट, और जितने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट हुए ROI आपको ज्यादा है। ये चीज स्पेसिफिक जा बहुत, सकते हैं सर, मोर यस, स्पेसिफिक जा सकते हैं। स्पेसिफिक जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, या तो आपका टारगेटेड ऑडियंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो यू कैन डिफाइन ऑडियंस एंड, सॉरी, डेमोग्राफी, एंड बजट की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, राइट। गूगल कभी ये नहीं बोलेगा कि आपको 10,000 से देना ही पड़ेगा मुझे, अदरवाइज मैं आपकी ऐड नहीं करूंगा। आप 2,000 दोगे तो भी ऐड करेगा, प्रोवाइडेड वो आपके CPC को जस्टिफाई करता है, राइट। सो देयर इज नो बजट कंस्ट्रेंट, जितना बढ़ना है वो बढ़ सकते हो, डिपेंड ऑन द ऑडियंस साइज, राइट। बजट, नो बजट कंस्ट्रेंट। सर इसमें एंड ऑफ द, इसमें जैसे हम लोग जब गूगल एड्स करते हैं तो जब उसमें हमको रिजल्ट्स दिखते हैं तो वी कैन प्रिडिक्ट द अदर थिंग्स, एनालिसिस ऑफ, तो बेनिफिट में एनालिसिस भी आ जाता है क्या? हाँ, जैसे हम लोग यू कैन, जो उसका रिजल्ट आएगा एड रन करने के हाँ बाद में जो ग्राफ्स दिखते हैं, हाँ सो हाँ, एट दैट पॉइंट वी कैन एनालाइज फॉर द फ्यूचर कि हमको किस तरह की ऐड करनी चाहिए करेक्ट 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 करेक्ट, दूसरों, मतलब हाँ फॉर द हाँ अदर हाँ, अदर और सही अदर। बात है आपकी। यू कैन एनालाइज 100%, यू आर राइट, राइट। सो यू गेट ऑल द डेटास, ऑल द सेगमेंटेशंस। वो कौन कौन से सेगमेंटेशन है ना, वो लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन ये भी 100%, क्योंकि डेटा मिलेगा तो आप एनालाइज कर पाओगे ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज इट्स अदरवाइज। इट्स मोर ऑफ की पाई चार्ट, और उसमें तो इट्स मोर क्लैरिटी फॉर्म में आ जाता है डेटा। हाँ हाँ, वो तो आप कोई भी फॉर्म में कर सकते हो विद द हेल्प हाँ, ऑफ गूगल लॉकर। गूगल ओके, लॉकर ना। हाँ हाँ हाँ, लॉकर स्टूडियो ओके, आप कर सकते ओके। हो। ओके, हाउ, कैसे करेंगे हम लोग? चलो, एड्स फंडामेंटल में आप जब कोई भी प्रोजेक्ट पर नया काम शुरू कर रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट बी अवेयर। आपको क्लाइंट से कौन सी क्लैरिटी लेनी है, या आपको कोई भी प्रोजेक्ट पर कौन सी क्लैरिटी के साथ काम शुरू करना है? वेरी गुड, व्हाट इज व्हाई, द मानी गोल गोल में क्या आ सकता है, ऊपर देखिए एंड नंबर 2, what type of project specific they ऑडियंस। want, audience, targeted audience we can say. उसके बाद सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड। हाँ, वो Product specification. एड्स, कौन सी एड को दिखाना है। उसके बाद Sir, product specification one of the point यस, can be, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आप कंसीडर कर सकते हो, वो एड में आपको वो ऐड में आ जाएगा। डेमोग्राफी डेमोग्राफी, एंड और कुछ था, बजट, बजट। यस, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान देना, कभी भी इसके बगैर, और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो उन्होंने बोला वो भी एड्स में आएगा 100%, ठीक है। तो ये तो चीज एड्स में आपको बहुत ध्यान कुछ आ रखना। जाएगा ना, हाँ एड्स में बहुत सारे, एड्स में बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे हाँ हाँ, पॉइंट्स आ जाएंगे। करेक्ट, मानी इन नटशेल आपको क्लाइंट के बिजनेस मॉडल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट एंड सर्विस द क्लाइंट इज ऑफरिंग वो आ जाता है। क्लियर? बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? जब आप गूगल एड्स कोई भी, सॉरी, कोई भी पेड एड्स कर रहे हो तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जो बजट का 20 to 30% है वो एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, 20 to 30% you should spend in experiment, very good। उसके बाद दूसरा मिसलेनियस एक्सपेंस लेना है, करेक्ट। उसके बाद बाकीना जे 70% છે એ જે ઇન્વેસ્ટેડ હોય એ જ હોય. MR अकाउंट, वेरी गुड। उसके बाद एवरी डे इसको एनालाइज करना है, और आपको आपके जो मैट्रिक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह में आके वही करना है, राइट। सुबह में आके जैसे हम लोग चाय नाश्ता करते हैं वैसे ही इसको सुबह में देखना है कि भाई क्या कॉस्ट पर लीड आई, क्या नंबर ऑफ लीड आई, या कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या मिला, क्या नंबर ऑफ कन्वर्जन, और Anal- वहां तक रुकना नहीं है। उसके बाद वो चेक करना है कि अगर लीड नहीं मिली है या बहुत ज्यादा मिली है तो उसका रीजन क्या है।
This is मतलब वो very रीजन कैसे एनालिसिस मतलब किस कुछ है जिससे हम हाँ, एनालिसिस आएगा आने वाले लेक्चर्स में आएंगे, ओके ओके राइट? यस, करेक्ट, तो वो आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनालाइज रिजल्ट्स ऑन अ डेली बेसिस. डेली केपीआई हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है, सेम एज अबाउट, सेम एज गोल. आपकी एक्सरसाइज क्या है? 3 बिजनेस मॉडल के लिए आपको ये करके लाना है. डू हाउ फॉर 3 बिजनेस मॉडल. ठीक है, क्लियर है? हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक? इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 90 मिनट्स 3 के लिए करने में. ठीक है, क्लियर? चलो, गूगल एड्स. सो गूगल एड्स फंडामेंटल हो गया. गूगल एड्स तो अभी हमने, हाँ, गूगल एड्स के फंडामेंटल हम लोग देखते हैं. सो सीपीसी या सीपीसी की, चलो गोल क्या है हमारा? सो गोल ये है कि स्पेंड करने से पहले हम लोग कैलकुलेट कर ले कि क्लाइंट को आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? सो बिफोर वी आस्क क्लाइंट टू रन एड्स, वी कैन मेजर, वी शुड और वी मस्ट मेजर. क्लियर है? राइट? इससे क्लाइंट का आरओआई हमेशा पॉजिटिव रहेगा. चलो, बेनिफिट क्या है इसका? अगर क्लाइंट का आरओआई पॉजिटिव नहीं है तो आप उसको रेकमेंड नहीं करो कि भाई आप करो, मानी क्लाइंट के पैसे आप सेव करोगे. और अगर आरओआई मिल रहा है तो आप बोल सकते हो कि ज्यादा बजट लगाओ वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, बिकॉज अल्टीमेटली द प्रोबेबिलिटी इज हाई. प्रोबेबिलिटी शब्द यूज करना है और एक्सपेक्ट शब्द यूज करना है, विल नहीं बोलना है. आप ये सब प्रोबेबिलिटी पर चलता है, हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? नॉर्मली होता है लेकिन हमेशा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएबल्स. क्लाइंट की सर्विस अच्छी नहीं है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में खराब है, यू कैन नॉट कंट्रोल दोस थिंग्स. समझ रहे हो? ये गोयल की सपोज, मुझे पता नहीं है, रेपुटेशन मार्केट में बहुत खराब है कि बहुत कंस्ट्रक्शन बहुत खराब होता है इसका, तो आप लीड तो बहुत ला कर दोगे लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं होगा. क्लियर? तो ये वैसा है. सो नेवर गिव एनी कमिटमेंट, जस्ट गिव कि भाई ये हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, यू कैन एक्सपेक्ट प्रोबेबिलिटी. चलो, बेनिफिट क्या है इसका? ऊपर जो लिखा है वही है कि भाई यू कैन कंट्रोल आरओआई, राइट? अगर आप ज्यादा क्वालिटी स्कोर बढ़ाओगे तो आरओआई बढ़ेगा, राइट? एंड डिफाइन ऑडियंस एंड डेमोग्राफी. चलो, कैसे करेंगे हम लोग? सीपीसी की फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? हु विल टेल मी? सीपीसी की फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट था कन्वर्जन रेट, कन्वर्ज conversion rate. प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट, राइट? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट मल्टीप्लाई बाय 0.9. Yes, sir. ओके, ये आपकी सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक. दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट यू शुड पे टू द गूगल और यू शुड एनी अदर प्लेटफॉर्म. और अगर आपकी वो है सर्विस वेबसाइट है तो कन्वर्जन रेट, Into कन्वर्जन रेट की जगह पर कन्वर्जन रेट आएगा number of leads. एंड नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आफ्टर लीड. दो कन्वर्जन रेट आएगा, एक तो लीड रेट आएगा, कितनी 100 में से लीड मिल रही है, और दूसरा आएगा लीड्स कन्वर्जन रेट. ठीक है, इन केस ऑफ सर्विस वेबसाइट. इन केस ऑफ ई कॉमर्स इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, चलो, आरओआई. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आरओआई? सिंपल है, प्रॉफिट माइनस Marketing cost. मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट करना है अदरवाइज वो गलत देगा, डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट. मार्केटिंग कैसे करेंगे? हो गया. चलो, क्वालिटी स्कोर में गूगल क्या कंसीडर करेगा? व्हाट थिंग्स गूगल विल कंसीडर इन द केस ऑफ क्वालिटी स्कोर? लीड Lead and quality. सबसे पहले Relevance. एड रिलेवेंस, एड रिलेवेंस પછી उसके बाद Add extension. Extension. एड, एड एक्सटेंशन उसके बाद सीटीआर, क्लिक CTR. Landing page. Very good.
लैंडिंग पेज। क्लियर? क्वालिटी स्कोर सबको क्लियर हो गया? क्वालिटी स्कोर का क्या फायदा है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी स्कोर? लो CPI एंड हाईएस्ट रैंकिंग। कम सीपीसी में आप ज्यादा रैंक हायर कर सकते हो। हायर द रैंक, हायर द सीटीआर। जितने लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे हम्म, उससे कम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उससे कम लोग जो नीचे ऐड दिखेगी उससे उससे कम में करेंगे। यहाँ पर तो ऐड नहीं आई है, बट समटाइम्स इट कम्स हियर एज वेल। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट। ओके, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी? सीपीसी पॉजिटिव, आरओआई पॉजिटिव रहे उसके तरीके से करना है, राइट? डू शो the ads or run the campaign to keep, ठीक है? KPI क्या रहेगा? की परफॉर्मेंस इंडेक्स। हम्म, व्हाट विल बी द की परफॉर्मेंस इंडेक्स? यही है, सेम एज गोल, नंबर ऑफ लीड्स, कॉस्ट पर लीड्स, क्लिक राइट, एंड नंबर ऑफ एंगेजमेंट, कॉस्ट पर एंगेजमेंट इन केस ऑफ ब्रांडिंग। चलो, एक्सरसाइज क्या है आपकी? 3 कोई भी रैंडम बिजनेस के लिए आप ये गूगल एड्स। एड रैंक वाला निकाल कर देना। फॉर 3 बिजनेस कैलकुलेट, सीपीसी भी कैलकुलेट करना, आरओआई भी कैलकुलेट करना, और वो एड रैंक भी कैलकुलेट करना। एड रैंक पता है ना? एड रैंक इज CPC into quality score. CPC into quality score, right? How much time it is going to take? Again 90 minutes, right? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। In the coming lecture, we are going to meet on Wednesday and discuss, start with search ad. पहले हम लोग गूगल एड्स का वो स्ट्रक्चर देख लेंगे और एक सर्च एड से शुरू करेंगे, एक प्रैक्टिकल, एक बिजनेस के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।